The Anji? meeting is streaming live on Facebook. Okay, so I'll start then. Sure, ma'am. Good afternoon, everyone. I, Dr. Vinita Tuli, welcome you all to the webinar on professional etiquettes at workplace, organized under the aegis of the IQAC of ARSD College, University of Delhi. It gives me immense pleasure to welcome our distinguished speakers, Professor Anil Kumar Sharma, Director, IIMT, Guru Gobind Singh Indraprasth University, Delhi, Director, Ideal Institute of Management and Technology, School of Law, Guru Gobind Singh Indraprasth University, Delhi. Mr. Mahesh Sharma, Youth Students Welfare and IQAC Coordinator, IIMT, Guru Gobind Singh Indraprasth University. We are really honored to have you with us on this webinar on professional etiquettes at workplace, which, if followed, all involved are able to feel more comfortable and things tend to flow more smoothly. I also welcome our principal, Dr. Gyantosh Kumar Jha, under whose guidance the college has seen an exponential growth and achieved rank 13th in the college category at All India level, announced by the NIRF MHRD in 2020. I invite him to say a few words and welcome our guests. Thank you, Vinita. On behalf of Atmaram Sanatan Dharma College, I welcome Professor Anil Prakash Sharma, Director IIMT, as keynote speaker. Thank you, sir. Mahesh Sharma, Dean Student Welfare, IIMT, as speaker. And Dr. Vinita Tuli, Convener Webinar Committee, all the participants in this webinar. It's a great pleasure for me to welcome you all in this webinar on a very pertinent and important topic on professional etiquettes at workplace. And I hope that this webinar will be very useful for all of us, because both Professor Sharma and Mr. Sharma are going to enlighten us on professional etiquettes, how to behave, how to work, how to deal with the people at workplace. So it is a very interesting and important topic. So thank you so much, Professor Anil Prakash Sharma and Mr. Mahesh Sharma, for giving us your valuable time for this webinar. Thank you so much. Once again, I welcome you all. Thank you. Over to Vinita. Thank you, sir. Professor Anil Prakash Sharma is the director at IIMT, Guru Gobind Singh Indraprasth University, Delhi. Director, Ideal Institute of Management and Technology, School of Law, Karkarduma, Guru Gobind Singh Indraprasth University, Delhi, from 2006 till date. Professor Sharma has a specialization in industrial psychology, human resource development, education, English, education technology, yoga, guidance and counseling. He is a guest editor, ABDC Journal, Scopus Indexed, International Journal of Business and Globalization, InterScience Publishers. He is a member, National Editorial Board of Journal of Progressive Education, member board of Studies Education Program, GGSIPU from 2010 to 12, Coordinator Education Program, Guru Gobind Singh Indraprasth University. Professor Singh has 9 books published, and some of them are Kalidas Ke Kavya Mein, Saundarya Vidhan, The True Shades of Love, textbook on Management Information System, and many more. He did his Doctor of Philosophy in 2014 in Education from Jivaji University, Gwalior. He has a total teaching experience of over 27 years. He has 15 research papers published in journals of repute. I welcome you again, sir, and invite you to speak on a very relevant and pertinent topic of professional etiquettes at workplace. I welcome you again, sir. Thank you. Thank you. Should I start? Yes, sir. Okay. For screening, actually, thank you very much, Dr. Jha and Dr. Vinita Tuli,
and Miss Baljit Kaur for sending the invitation to me. And please, in 1 minute, I'll say that we have been using the Cisco WebEx platform application, and in the month of April, when we were using the Zoom, and we got the information on 4th or 5th April that Zoom through this application, most of the data was being hacked. So we stopped using this Zoom. So I told Mr. Mahesh Sharma that please tell them that if this is Cisco WebEx, it will be wonderful, because we have been using it for a long time. But when I came to know that again Zoom is being used, so I was a little bit worried, because I had uninstalled this, and I didn't know how to share the content in this, because we stopped it the moment we started it. So 2 to 3 days we started Zoom, but we stopped sharing the contents. But anyway, again, this is the pandemic era, and we have to learn a lot of things. In the meantime, I'll try to share my information with you. Please, Mr. Mahesh Sharma, please tell me if this is shown on the screen. Is this visible? Yes, sir, it is visible. Okay, thank you very much. It's sharing right now. Okay, Yes, sir. let me see. इसको मैं Started. स्क्रीन पे ओके पूरा कैसे करेंगे ये मुझे कुछ बताया था आपने एडिटिंग करने के लिए इसमें Sir, use arrow keys. एरो इसमें नहीं तो ये ऐसे ही आता रहेगा ऐसे चलने दें या तो कोई प्रॉब्लम नहीं Sir, F5. You press F5. F5. F5 तो कहा था आपने लेकिन ये F5 से हो नहीं रहा है इसको एडिटिंग की कहा था आपने So function F5. ओके आई ट्राई फंक्शन F5 नहीं ये इसमें भी नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कहा था ना इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है ओके तो एक Sir, काम do I करता हूँ, share? मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ पहले और उसके बाद हाँ इट्स ओके It's okay, sir. It's okay. तो जहाँ साहब ये थोड़ा टेक्नोलॉजिकल चीजें होती हैं नए नए ऐप्स आ रहे हैं अब तो जूम तो जाने वाला था लेकिन आज ही हमारे इंडिया के जो व्यापारी हैं उन्होंने कहा कि जूम को हम बैन कर रहे हैं नहीं यूज करेंगे बट चूंकि आपने इसको इस्तेमाल कर रखा है और मुझे महेश ने बताया कि इसका जो मालिक है वो अमेरिकन है चाइनीज आदमी ने छोड़ दिया एंड वी वर ट्राइंग टू अवॉइड दिस थिंग तो सर आज थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल झा साहब एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विनीता तुली आपने मुझे आमंत्रित किया इस चीज के लिए आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड मैं आपके कॉलेज को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने 50 के करीब वेबिनार्स कर लिए हैं इस पे अपने कॉलेज की तरफ से एंड आई सपोज दैट आई आल्सो अटेंडेड अ कपल ऑफ वेबिनार्स फ्रॉम योर साइड बिकॉज आई कैन रिमेंबर द नेम ऑफ मिस बलजीत कौर शी यूज्ड टू सेंड द ई सर्टिफिकेट आल्सो सो थैंक यू वेरी मच लेकिन आपकी जो टीम है बहुत ही वंडरफुल टीम है बहुत ही अच्छे ढंग से काम करती है आज मैं तो 1:30 बजे ही ऑन करके बैठ गया था मैंने कहा आज तो DU वालों ने बुलाया है तो मेरी तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि जूम का मैं ट्रायल लेना चाह रहा था बट थैंक यू वेरी मच मैम एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज वंडरफुल टॉपिक और जितने भी पार्टिसिपेंट्स मुझे सुन रहे हैं मेरे ख्याल से 220 के करीब पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं सो आई विल बी यूजिंग बाइलिंगुअल लैंग्वेज एंड एज आई हैव बीन टोल्ड सी हमारे प्रिंसिपल साहब सामने बैठे हैं डॉक्टर विनीता तुली बैठी हैं कोऑर्डिनेटर और बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स बैठे हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है ना this topic is a very wonderful topic throughout the world. The problem is that when we join the college, when we join the universities, when we join the education institutes, or when we join the organizations, what we forget, the etiquettes. On the basis of etiquettes, this is one thing, on the basis of etiquettes, you can achieve the highest post in your life. This is my personal understanding, this is my personal experience. But before that, we have to know that etiquettes are of two types. One is the personal etiquette and another is the professional etiquette. Personal etiquette is that which we use with our relatives, with our parents, with our brother, sister, husband, wife, and all the friends, which are close knit group. जो बहुत ही नजदीक लोग होते हैं हमारे साथ जो भी हमारे लोग होते हैं मित्रगण होते हैं उनके साथ जो जिस तरीके हम तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं सॉरी उनको हम पर्सनल एटिकेट्स बोलते हैं लेकिन पर्सनल एटिकेट्स तो ठीक हो जाएंगे पर्सनल एटिकेट्स तो आप ज्यादा खराब नहीं कर सकते क्योंकि आपके ब्लड इज थिकर देन वाटर खून जो है पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है लेकिन जो प्रोफेशनल एटिकेट्स हैं दीज आर दोज एटिकेट्स व्हिच आर यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस
ऑफ एटिकेट्स, ऑफ तौर तरीका और ऑफ बिहेवियर कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनको किस तरह से बिहेव करना चाहिए कॉलेज के अंदर. And I presume that most of the people are from college educational background in this group. और ज्यादातर लोग टीचिंग में ही होंगे. अगर नहीं भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर वो कंपनी में भी हैं, इंडस्ट्रीज में भी हैं, आगे भी हैं, पीछे भी हैं, कोई समस्या नहीं है. तो ये जो एटिकेट्स है ये हमें समझ लेना चाहिए. ये एटिकेट्स आपके हाथ में गोल्डन एग है, एक सोने का अंडा होता है, या ये कह लें सोने की मुर्गी है, जिसकी वजह से आप कॉलेज के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस भी पोस्ट पे आप जाना चाहें जा सकते हैं. ये मैं आज आपको लिख करके दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ. दिस इज अ वंडरफुल मिरेकल, दिस विल हैपन विद यू. आप देख सकते हैं, दीज आर रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर. आपके स्टाफ रूम के अंदर, आपकी कैंटीन के अंदर, आपके प्रिंसिपल साहब के पास जब आप जाते हैं, या अपनी जो कोलीग्स हैं उनके साथ आप मिलते हैं, उनके साथ मिलते समय, उनके साथ जाते समय, उनके साथ बातचीत करते समय किस तरह के तौर तरीके आपको अपनाने चाहिए, उनको हम बोलते हैं प्रोफेशनल एटिकेट्स. सो दीज आर सेट ऑफ मैनर्स. These are set of manners which have been given to you by your professional organizations in which you are working. अब आप कहेंगे सर ये set of manners हैं क्या? Please remember, these are not those eligibilities, those qualifications which you have been selected by. जिस चीज के बेस पे आपको सिलेक्ट किया गया ये वो नहीं है, वो तो आपकी क्वालिफिकेशन है. जैसे अभी डॉक्टर विनीता तुली ने क्वालिफिकेशन पढ़ी थी मेरी, वो क्वालिफिकेशन है, उसके बेस पे तो मैं पेपर क्वालिफिकेशन पूरा करता हूँ और मैं उसमें आने के एलिजिबल बनता हूँ. लेकिन इंटरव्यू के समय पे जब आप लोग इंटरव्यू बोर्ड पे बैठते हो, इंटरव्यू बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछता है, उसमें आपकी क्वालिफिकेशन को नहीं देखा जाता फिर, बिकॉज यू आर एलिजिबल. लेकिन क्या आप एलिजिबल हैं उस कॉलेज के अंदर रहने के लिए, उस संस्था के अंदर रहने के लिए? क्या आप बच्चों को पढ़ाने के लिए काबिल हैं या नहीं, उनके साथ वार्तालाप करने के लिए काबिल हैं कि नहीं? ये होते हैं एटिकेट्स. आपने कोई क्वेश्चन पूछा, आपके बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने, जो मेंबर्स हैं बोर्ड के आपके, उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, आपने उसका आंसर कैसे दिया, ये एटिकेट कहलाता है. अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ. द कंडक्ट ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय अथॉरिटी टू बी ऑब्जर्व्ड इन सोशल और ऑफिशियल लाइफ, वो मैं आपको बताऊंगा अभी कौन कौन से होते हैं, आपने पढ़ लिया होगा. कुछ बिजनेस एटिकेट्स होते हैं. Etiquette is what you are doing and saying when people are looking and listening. What you are thinking is your business. देखिए, प्रोफेशनल एटिकेट्स में आप क्या सोचते हैं इससे कोई मायने नहीं पड़ता. It makes no difference to anyone. Everybody is concerned how do you behave with them, how do you perform your act in front of them. That is more important. So etiquette is what you are doing and what you are saying when people are looking at you. लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, लोग आपको देखते हैं, लोग आपकी बातों को सुनते हैं, उस समय आप किस तरह से अपने आप को बिहेव कर रहे हैं, वो आपका प्रोफेशनल एटिकेट होता है. ये भी फर्क नहीं पड़ता कि हाउ इंटेलिजेंट यू आर, हाउ एक्यूरेट योर कंप्यूटर इज, बट and until unless you know how to interact with the people, that will not be giving you the higher post, that will not be giving you the better things in your life. So अगर हम देखें प्रोफेशनल एटिकेट्स में सबसे बड़ी बात होती है गुड मैनर्स. अगर आपके गुड मैनर्स अच्छे हैं तो ये गुड मैनर्स, जो बातचीत करने की कला है आपके पास, तमीज से रहने की कला है, तहजीब से रहने की कला है, आप अपने प्रिंसिपल साहब का रिस्पेक्ट करते हैं, उनके कहना मानते हैं, उनके कही हुई बातों को मना नहीं करते हैं, चाहे वो आपकी फ्रेंड है, चाहे आपके प्रिंसिपल है, चाहे आपके कोऑर्डिनेटर हैं, चाहे आपके वो सुपरवाइजर हैं, चाहे आपके वो इंचार्जेस हैं. अगर आपको उनके साथ बात करने की कला आ गई ना, तो आपको आपकी कॉलेज से, आपकी पोस्ट से कोई हटा नहीं सकता. ये मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ आज. सो ये वर्क प्लेस पे जो भी क्वालिटी आपके अंदर है, I'm not talking about संस्कार्स, I'm talking about professional etiquettes. Please उसका ध्यान देखिए. Etiquette is found in many areas of daily life. At least कॉलेज की बात में करेंगे. वर्क प्लेस पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, because you all belong to work places of your life. गोल्फ कोर्स, ये आप में से मेरे ख्याल से 100 में से 99 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, because most of you must not be playing the golf. लेकिन टेलीफोन, ये अगर आपके बॉस का फोन आता है आपके पास, आपके फ्रेंड का फोन आता है, फ्रेंड इन द सेंस कॉलीग्स, वहां पे फोन आता है, तो आपको किस तरह से उनसे बातचीत करनी चाहिए, क्या कहना चाहिए, वो दैट आई विल टेल यू. एयर ट्रैवल, जब आप हवाई जहाज में बैठते हैं, मुझे आई कैन टेल यू दैट 50% ऑफ यू हैव ट्रैवल्ड थ्रू एयर, तो उसमें भी आपको पता चलेगा. स्कूल, यानी कि जो स्कूल के लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया, स्कूल में कैसे एटिकेट्स होते हैं. ये बाकी बोटिंग, ड्राइविंग ए व्हीकल में भी, बोटिंग में तो आप बोटिंग तो करते नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत नहीं है. ड्राइविंग अ व्हीकल, देयर यू नीड एटिकेट्स. ईमेल, लेटर्स, मीमोज, ये आपके जो आपके सीनियर्स हैं वहाँ पे जब आप ईमेल्स लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, मीमोज आपको मिलते हैं या आप देते हैं किसी को, वहाँ पे इंपॉर्टेंस है. स्पोर्ट्स में आपको बहुत सारी इसकी चीजें होती हैं. ये जो वर्क प्लेस पे जो एटिकेट्स होते हैं, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ? नंबर 1, इट अवॉइड्स वर्क प्लेस टेंशन. अगर आपने सही ढंग से
एटिकेट्स यूज किए हैं अपने ऑफिस के अंदर, तो ये आपका बहुत टेंशन खत्म कर देगा। ये आपके एम्प्लॉयज को जो स्ट्रेस मिलता है, अभी 3-4 दिन पहले हमने स्ट्रेस के ऊपर एक रखा था रिफ्रेशर कोर्स में, तो आप देखेंगे कि स्ट्रेस it kills your thinking abilities. The moment you start having the stress, it starts killing your perception, it starts killing your logical abilities, it starts killing your decision making abilities. ये आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं आपके बीच में, तो आप सही नहीं सोच सकते, आप उस व्यक्ति के बारे में हमेशा बुरा बुरा ही सोचेंगे जिसके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। तो ये प्रोफेशनल एटिकेट्स इसके लिए भी आपको बहुत हेल्प करेगा। जो भी अगर आपने क्वेश्चन आंसर पूछने हैं तो आप बाद में पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पीपीटीज बहुत ज्यादा हैं। इन केस आई स्टार्ट गिविंग यू द क्वेश्चन आंसर, सो जो दूसरे हमारे स्पीकर हैं मिस्टर अमित शर्मा, ही विल नॉट बी एबल टू डू द जस्टिस। और वैसे भी ये जो टॉपिक है 2 घंटे का है और आपने मुझे 30 से 40 मिनट दिए, बट आई विल ट्राई टू डू जस्टिस विद माय वर्क। अब आप देखिए एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन, जिस भी इसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम करते हैं वहां पे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। कैसे मिलता है? आई विल टेल यू। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, आपके काम करने की शक्ति को बढ़ाता है। अगर आपके पास एटिकेट्स हैं, ये आपको आपके काम करने के लिए तौर तरीकों के जो जितने भी काम है आपके पास, उसको काम करने में आपकी सहायता करता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस भी व्यक्ति के साथ आप काम करते हैं वो व्यक्ति खुश रहता है, स्ट्रेस फ्री प्लेस को रखता है। देखिए, की एलिमेंट्स टू अ प्रोडक्टिव हैप्पी वर्क प्लेस। जिस भी जगह पे हम काम करते हैं, अगर आप ये 3 चीजें नहीं है तो आपको उस जगह को छोड़ देना चाहिए तुरंत। You have to be kind, you have to be courteous, you have to be respectful. अगर ये तीनों ही चीजें नहीं हैं आपके अंदर तो you have to introspect. आपको अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा, क्या आप दयालु हैं, क्या आप courteous हैं, क्या दूसरों की आप नम्रता से पेश आते हैं, क्या आप दूसरों के प्रति respectful हैं। Even if you do not like anyone as a colleague in the office, still the demand is that you have to be kind to that person, you have to be courteous to that person, you have to be respectful to that person. क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि दुश्मन के पास भी अगर योग्यता है तो हमें उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। आप किसी से इसको इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि या तो वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, या तो उसके पास आपसे ज्यादा योग्यता है, या वो आपसे ज्यादा समझदार है, इसलिए आप उसको पसंद नहीं करते। देखिए, किसी भी व्यक्ति को जो आपसे कम शक्तिहीन है या कम ज्ञानवान है, आप कभी भी उसे ईर्ष्या नहीं करेंगे। पहली बात, आप कभी भी उसकी बेइज्जती नहीं करेंगे, क्योंकि दैट पर्सन डजंट डिजर्व टू बी इंसल्टेड। आप हमेशा उसकी बेइज्जती करेंगे, उसकी इंसल्ट करेंगे जिसके साथ आपका काम चल नहीं रहा है, जो आपका कहना मान नहीं रहा है, जो आपकी बातों को सुनता नहीं है, जो आपको डोमिनेट नहीं करने देता। एंड मोस्ट ऑफ अस ट्राई टू डोमिनेट द पीपल, सो देयर इज नो नीड टू डोमिनेट, बिकॉज लव कैन नॉट बी अर्न्ड थ्रू डोमिनेशन, लव इज अर्न्ड थ्रू रिस्पेक्ट। इसलिए 3 चीजें अगर आपके पास नहीं है उस प्लेस में, तो प्लीज रिमेंबर दैट आपको बहुत ही जल्दी एक काउंसलिंग की जरूरत है, आपको बहुत ही जल्दी एक सेमिनार की जरूरत है, एक वर्कशॉप की जरूरत है, क्योंकि ये तीनों चीजें जिस व्यक्ति के अंदर नहीं है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसका आप ध्यान रखें। गेटिंग टू द टॉप, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पे कैसे पहुंच सकते हैं? आपके अंदर हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, कि कई आपके फ्रेंड्स होते हैं जो आपको गलत गलत बोलते हैं, इंसल्ट करते हैं, या बेरुखी दिखाते हैं, या इमोशनली नेगेटिव होते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू destroy your positivity. That person will never be able to destroy your emotional strength. So please remember that you have to be positive. आजकल इतना टफ टाइम चल रहा है, 4 महीने हो गए कोरोना के लिए, लेकिन फिर भी इंडियंस आर ट्राइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। इंडियंस बड़े पॉजिटिव हैं। और आज ये खबर आई थी कि हमारी जो 10 लाख में से जो मोर्टेलिटी रेट है वो 501 है, जबकि 10 लाख में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें 10 लाख में से मोर्टेलिटी रेट है जो कोरोना की वजह से डेथ रेट, दैट इज 1094। आप देख सकते हैं हाफ से भी कम है हमारी। तो ये हमारी पॉजिटिविटी है, हमारा एटीट्यूड है, आवर बिलीफ इन सोशल बीइंग, आवर बिलीफ इन लाइफ। तो जब तक हमारा बिलीफ इन लाइफ होगा तब तक हम बहुत खुश रहेंगे। विलिंगनेस टू हेल्प, हम दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं क्या करेंगे हेल्प करके, तो हेल्प करना बहुत जरूरी है। जितनी ये चीजें लिखी हुई हैं, 3 और 3 6 और 2 8 चीजें, अगर आप इसको यूज करते हैं तो आई एम टेलिंग यू, नोबडी कैन स्टॉप योर एपेक्स अचीवमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे को आप रिस्पेक्ट देना सीखें। कंप्रोमाइज भी करना चाहिए। कई बार आपको लगता है कि आपके प्रिंसिपल ने आपको बहुत शाउट कर दिया, बहुत ही ज्यादा आपके ऊपर हार्श वर्ड्स यूज किए हैं, बट प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड योर प्रिंसिपल, हिम और हर, because that principal is not thinking only about you, that principal is thinking about the whole college। क्योंकि कॉलेज के अंदर ईंट भी गिरती है ना, तो वो प्रिंसिपल के सिर पे गिरती है। वो बच्चों को लगेगी तो प्रिंसिपल को लगती है, सीधा प्रिंसिपल से ही पूछा जाता है, सारा मीडिया प्रिंसिपल के पास आएगा,
प्रिंसिपल को आगे मैनेजमेंट को आंसर देना होता है। तो when the principal is shouting at you, that means there are a lot of things happening in his mind or her mind. उसके पास इतना समय नहीं है कि आपको प्यार से समझा सके। तो इसलिए उस समय आप अपने उसको जो भी आपका गुस्सा है या नेगेटिविटी वो शो ना करें ऑफिस में। आप उस समय यस करके निकल जाएं और बाद में फिर आप कह सकते हैं सर आई वांट टू टॉक टू यू, बिकॉज वो पूछेंगे क्या बात है, कहना सर आई एम लिटिल बिट इमोशनली डिस्टर्ब, प्लीज हेल्प मी आउट, एंड योर प्रिंसिपल विल बी रेडी टू हेल्प यू। दुनिया का कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी डायरेक्टर ऐसा नहीं है कि आप उसके पास अपनी सहायता मांगने के लिए जाएंगे वो मना करेगा या करेगी, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो वो जरूर आपकी हेल्प करेंगे। मैं ये आपको लिख के दे सकता हूँ, he or she will always help you। लेकिन उस समय अगर आपने कुछ कहा तो बातें बढ़ सकती हैं, जो आपके इमोशन से फ्लेयर अप हो सकते हैं और उसमें बड़ी बैड सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। द प्रिंसिपल में बी वेरी मच एंग्री, यू मे बी एंग्री, दोनों के बीच में वर्ड्स हर्ल हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंके जा सकते हैं, शब्दों की अग्निबाण हो जाते हैं। उसमें आपको चुप रहना चाहिए, ये मेरा अपना अनुभव है, आप इसको ध्यान में रखिए। तो उस समय कंप्रोमाइज कर लें आप उस चीज, कंप्रोमाइज का मतलब एडेप्टेबिलिटी। बाद में आपके 1-2 घंटे 3 घंटे या अगले दिन बोल दें सर आपने उसमें कहा तो मुझे बड़ा दुख हुआ था, प्लीज बताइए मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ अपने आप को, मैं कैसे अपने आप को ठीक कर सकता हूँ, एंड ही विल बी वेरी हैप्पी। हो सकता है आप उसके नंबर 1 कैबिनेट में आ जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो सोचेंगे देखो इस बंदे ने, इस व्यक्ति ने मेरे पास आकर के मेरे से पूछा है, सो एवरीबडी फील्स हैप्पी। देन पंक्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके प्रिंसिपल साहब 8:55 पे आ रहे हैं, टाइम है 9 बजे का और आप आ रहे हैं 9:05 पे, सो बंगाली में कहते हैं एना चौल बे, ये नहीं चलेगा। आपको प्रिंसिपल से पहले ही पहुंचना है, आपको अपने बॉस से पहले पहुंचना है, आपको अपने मैनेजर से पहले पहुंचना है, आपको अपने सीनियर से पहले पहुंचना है। अगर आप सोचते हैं मेरा प्रिंसिपल तो क्या है, उसके पास कोई काम ही नहीं है, वो तो आ जाता है चला जाता है, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन ये नहीं है। इफ द प्रिंसिपल इज कमिंग इन टाइम देन यू हैव टू कम बिफोर दैट पर्सन, तभी आपकी पंक्चुअलिटी होती है। और ये ना सोचे कि नोबडी इज ऑब्जर्विंग यू, एवरीबडी इज ऑब्जर्विंग यू। खास करके जो मैनेजमेंट होती है, खास करके जो बड़ी पोस्ट पे लोग बैठे होते हैं, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है, इसलिए वो वहां बैठे हुए हैं। वो आपकी एक एक चीज को नोट करते हैं, एक एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं, और वो टाइम आने पे उस चीज को बताते हैं आपको। जब भी समय आएगा वो आपको कहीं ना कहीं आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी प्रमोशन भी हो गई, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके लिए आपकी जो मैनेजमेंट है आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर जाती है, और आप सोचते हैं आपकी वजह से हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता है। देयर इज अ पर्सन सिटिंग फॉर यू, वहां पे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो आपके लिए काम कर रहा है बिना आपको बताए। जैसे पांडवों को लगता है कि उन्होंने युद्ध जीता है, पांडवों ने युद्ध नहीं जीता था, वो श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, वो हर जगह उनको बचा लेते थे। इसी तरह से एक व्यक्ति होता है जो आपके लिए बचाता है, जो अगर आप अच्छा काम करते हैं दैट पर्सन इज ऑलवेज देयर टू सेव यू, टू हेल्प यू। और वो है आपका प्रिंसिपल, वो है आपका बॉस, वो है आपका मैनेजर, वो है आपका सीनियर, वो है आपका कोऑर्डिनेटर। आपसे जो भी सीनियर होगा ना, वो हमेशा आपका ध्यान रखेगा, क्योंकि सीनियर को आपसे कोई जेलसी नहीं होती है। सीनियर को, वो तो सीनियर है, आप क्या कर लेंगे उसका। प्रिंसिपल का आप क्या बिगाड़ लोगे, प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल है, आप जिस पोस्ट पे हैं प्रिंसिपल, आज प्रिंसिपल है, कल को वो वाइस चांसलर बन जाएंगे, प्रो वाइस चांसलर बन जाएंगे, वो कहीं और डायरेक्टर बन जाएंगे, लेकिन आपकी पोस्ट पे नहीं आएंगे कभी, ये तो पक्का है। तो जो भी आपके सीनियर है ना, आप उनके साथ हमेशा सहयोग रखें, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम, चाहे सीनियर आपको कुछ भी कह दे, एक्सेप्ट द पर्सनल थिंग्स इन द स्टाफ रूम और हियर एंड देयर, उनको प्रोफेशनली कन्वर्ट ना करें। जो भी पर्सनल चीजें आपके बीच में होती हैं, कभी भी उसको प्रोफेशनल लेवल पे जाके डिस्कस ना करें। पर्सनल चीजों को पर्सनली रहने दें, प्रोफेशनल को प्रोफेशनली रहने, प्रोफेशनल को पर्सनल ना बनाएं, पर्सनल को प्रोफेशनल ना बनाएं, आप बड़े खुश रहेंगे, मजा आ जाएगा आपको। तो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स ओपिनियन, कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके ओपिनियन से सहमत नहीं होते हैं, आप भी नहीं होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके बारे में बैक बाइटिंग शुरू कर दें या गलत करना शुरू कर दें या उनके बारे में बुरा भला बोलने लग जाए। नहीं, अगर आपको बोलना तो उन्हीं के सामने जाके बोलो, यू गो एंड टॉक टू दैट पर्सन कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपने मेरे बारे में ऐसा कहा तो मैं आपके बारे में ये बोलना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, इसलिए ये तीसरे व्यक्ति को ना बताएं। क्योंकि जब आप दोस्त होते हैं ना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप बातचीत करते हैं, लेकिन बाद में जब जैसे आपकी दुश्मनी बदल जाते हैं, तो आप अपनी उस दोस्त की कहानियां सारी दुनिया को सुना देते हैं, उसको भी दुख होगा और आपके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी होगी। टीम वर्क आपको पता ही है, इसके लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है। Now getting to the top, it is continued. Show appreciation or give credit for a job well done. यदि आपका कोई भी दोस्त, चाहे वो आपका एनिमी है, चाहे वो आपका अपोनेंट है, चाहे वो आपका विरोधी है, वो आपके ऑफिस में काम करता है लेकिन अच्छा होता है, आप दूसरों को भड़काएं ना उसके अगेंस्ट। उसको ये ना कहे देखो ये तो बॉस के नजदीक है तो इसलिए उसको ये जॉब उसने करवा दी है, ऐसा नहीं होता है। अगर उसने जॉब चाहे, आपको भी पता है कि उसी ने करवाया है, प्रिंसिपल ने ही इसका हेल्प किया है, लेकिन स्टिल गो देयर, उनको थैंक यू बोलो, हाथ ना मिलाएं। आजकल हाथ नहीं मिलाना क्योंकि कोरोना चल रहा है,
और गले भी ना लगे, और वो फ्रेंच स्टाइल में भी ऐसे ऐसे ना करें क्योंकि हवा में भी कोरोना उड़ रहा है। तो इसलिए आप उसको तारीफ कर सकते हैं, उसको साधुवाद दे सकते हैं, उसको आप कॉन्ग्रेचुलेशंस दे सकते हैं, इससे उसको अच्छा लगेगा। लेकिन आपके मन को ज्यादा अच्छा लगे, देखो यू आर अ गुड पर्सन एंड यू आर डूइंग अ गुड थिंग टू दैट पर्सन, तो वो एप्रिशिएशन। हम लोग ना चुगलियां करने में एक्सपर्ट हैं, बैक बाइटिंग में एक्सपर्ट है, हम लोग दूसरों की गलतियां निकालने में एक्सपर्ट है, लेकिन हमने हर गलत व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाई भी होती है। द मोमेंट दैट पर्सन इज डूइंग गुड जॉब, प्लीज अप्रिशिएट दैट पर्सन एंड यू विल फाइंड दैट यू विल हैव नो एनिमी लेफ्ट। अपने जीवन में अपने दोस्तों की तादाद बढ़ाएं, अपने दुश्मनों की तादाद कम करें। जितने ज्यादा दोस्त होंगे उतनी ज्यादा रात के 2 बजे वो आपके काम आएंगे जब भी आप उनको कॉल करेंगे। सो स्पीक वेल ऑफ योर कोवर्कर्स। आपके जो कोवर्कर्स हैं, आपकी और उसकी प्रॉब्लम है ना, ए और बी के बीच की प्रॉब्लम है, आप सी को क्यों बताते हो? यू जस्ट गो एंड जी सर, शुड आई कंटिन्यू? ओके, तो आप उसके बारे में आप जो आपके कोवर्कर्स हैं, जो आपके दूसरे टीचर्स हैं, जो आपके प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो दूसरे लोग काम करते हैं आपके साथ, आप उसके बारे में कोई पूछता है ये ना देखो उस मैडम ने ना उस दिन ऐसा ऐसा किया, पता नहीं क्या समझते अपने आप को, आप कुछ भी रिस्पॉन्स ना करें। द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग द रिस्पॉन्स, तो वो हो सकता है जो आपके पास ऐसी बात कर रही है कर रहा है, वो फिर आगे बोलेगे देखो आपने ऐसे से कहा उसके बारे में। सो ये चेन है, ये चलते 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 इवेंचुअली उस व्यक्ति के पास जरूर पहुंचेगी जिस व्यक्ति के बारे में उसने बताया था। तो इसलिए ख्याल रखें कि स्पीक वेल ऑफ योर कोवर्कर्स। जब भी कोई आपसे किसी के बारे में राय पूछता है तो कहते हैं ना मेरे साथ तो अच्छा ही है, शी नेवर डिड रॉन्ग टू मी। कभी कभी हो जाता है, एक दो चीजें हो जाती है, बट बाय लार्ज दैट वुमन और दैट फैकल्टी इज गुड। आप अपनी तरफ से अगर माइनस माइनस करते रहेंगे तो वो उसका फायदा उठा के कहीं और मजा आ जाएगा उसको। सो ट्राई नॉट टू स्टेप ऑन एनीवन्स टोज और हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स। आप किसी दूसरे के कोट को पहनने की कोशिश ना करें और किसी के दूसरों के जूतों में घुसने की जरूरत ना करें, क्योंकि सबका जूतों का साइज अलग अलग होता है। हो सकता है वो जूता आपको काट सकता है, हो सकता है जूता बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इसलिए आप अपने ही जूतों का इस्तेमाल करें जब भी आप जर्नी पे जाते हैं, किसी दूसरे के जूते ना लें। जब भी आप अपने ऑफिस में होते हैं किसी दूसरे के जूते का इस्तेमाल ना करें। इसका मतलब ये होता है कि आप हैं, वो है, यू आर यूनिक एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो यूनिक। आपके अंदर जो योग्यता वो उसके अंदर नहीं है और उसके अंदर जो योग्यता वो आपके अंदर नहीं है, ये तो परफेक्ट है। आपको कैलकुलेशन अच्छी आती है, उसको नहीं आती है, उसको कंप्यूटर अच्छा आता है, आपको नहीं आता है, इट मेक्स नो डिफरेंस। आप कंप्यूटर के लिए उसके पास जाइए, वो कैलकुलेशन के लिए आपके पास आएंगे, इसलिए आपको फायदा होगा। और ये 4 तरह के लोग होते हैं सर, इनका ध्यान रखिएगा जिंदगी में। जो भी मैडम हो सर मुझे सुन रहे हैं, ये आप ये देखें, आई एम ओके यू आर नॉट ओके, आई एम ओके यू आर ओके, आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके, आई एम नॉट ओके यू आर ओके। ये 4 तरह के लोग होते हैं हमारी लाइफ में। और इसमें सबसे अच्छे लोग कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग ये होते हैं आई एम ओके यू आर नॉट ओके, कि मैं ही ठीक हूँ तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, तुम गलत हो। ऐसे लोग कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो कहते हैं जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी मैंने काम किया है, दैट इज द बेस्ट, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, एंड बट व्हाटएवर यू डू इट इज नॉट। तो ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोग आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये ठीक है, ये आप देखेंगे कैसे ठीक है। आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके, ये जो लोग हैं ये नेगेटिव हैं, ये ना तो अपनी उन्नति करते हैं ना आपकी उन्नति करते हैं। ये खुद दुखी रहते हैं, आपको भी दुखी करेंगे। ये इनको अगर 10 रुपए मिल जाएंगे ना, ये कहेंगे अरे क्या 10 रुपए मिले, उसको तो 12 रुपए मिले, देखो तुम्हें क्या मिला, तुम्हें भी तो 8 ही रुपए मिले हैं। तो ये दोनों भाई बहनें मिल जाते हैं, और जब ये दो नेगेटिव लोग मिल जाते हैं ना, पॉजिटिव लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। इसका आपने ध्यान रखना है। एक होता है आई एम नॉट ओके यू आर ओके। ये जो आई एम नॉट ओके यू आर ओके हैं, ये लोग बड़े ये लोग अपने आप को बड़ा ऐसे फील कराते हैं जैसे जिंदगी में सारी की सारी समस्याएं इन्हीं के ऊपर है। लेकिन आप बिल्कुल खुशी हो, आप तो बड़े अच्छे हो, आपके साथ तो प्रिंसिपल भी साथ देते हैं, आपके दोस्त भी साथ देते हैं, मेरे साथ कोई साथ ही नहीं देता, मुझे सारे लोग मेरे अगेंस्ट हैं। ये लोग भी बड़े खतरनाक हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज है आई एम ओके यू आर ओके। वो कहते हैं कि आपने एक काम किया, बहुत अच्छा किया, मैंने भी किया, बहुत अच्छा किया। सो दीज आर गुड पीपल। ऐसे लोगों को ध्यान रखिए, कहाँ पे आपको मिल सकते हैं ऐसे लोग। आपके डिपार्टमेंट में होते हैं, आपके स्टाफ रूम में होते हैं। ये लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में, आपको आगे बढ़ाने के लिए। सो जो लोग ये कहते हैं यार तुमने भी ठीक किया, मैंने भी ठीक किया, चलो छोड़ो, तो ऐसे लोगों को आपने हमेशा साथ देना। सो एंड बी केयरफुल विद योर अपीयरेंस व्हेन यू आर इन द ऑफिस। प्लीज रिमेंबर द गाइडलाइंस ऑफ द ऑफिस। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन ने जो गाइडलाइंस दी है उसको आप ध्यान रखें। आपको मीटिंग के लिए बुलाया है और आप पहन के जा रहे हैं जो पार्टी टाइप के कपड़े, तो वो अच्छी बात नहीं है, उसका आप ध्यान रखेंगे। ड्रेस अप्रोप्रिएटली। अगर आपको नोटिस होना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप
किसी खास प्रोग्राम के लिए आपको बुलाया है, आपको पेरेंट टीचर मीटिंग में बुलाया और आप शादी की साड़ी पहन के चले गए, ये नहीं चलेगा। इस तरह से आपके कॉलेज में मैनेजमेंट की मीटिंग हो रही है तो आप ऐसे कपड़े पहन के चलेंगे जिनका उस मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है। सो यू हैव टू बी फॉर्मली ड्रेस्ड। अगर आप नहीं है तो पीपल विल टेक नोटिस ऑफ दैट एंड दे विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट यू, राइट। तो इसलिए हर जगह पे अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं, अलग अलग तरह का कल्चर होता है, उसको हमेशा अपने ध्यान रखना है। आप अदर्स टेंड टू बिलीव दैट यू आर व्हाट यू अपीयर टू बी, ये ध्यान रखना है। लेकिन जिस पोजीशन पे आप हैं वो कपड़े नहीं पहनने आपने, जिस पोजीशन के लिए आप जा रहे हैं वो वाले कपड़े पहनने। इसका मतलब ये है अगर मैं डायरेक्टर हूँ और मैं डायरेक्टर बन के जा रहा हूँ लेकिन मुझे बुलाया गया है वाइस चांसलर की पोस्ट के लिए, तो मैं देखूंगा कि वाइस चांसलर की पोस्ट के लिए मुझे किस तरह की अटायर पहननी चाहिए। ये नहीं कि मैं डायरेक्टर के कपड़े पहन के जाऊंगा। आई विल हैव टू थिंक कि मैं एक बड़ी पोस्ट के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे लोग जो है मेरे से भी बड़े होंगे, दे आर मच मोर एक्सपर्ट देन आई एम। तो मुझे ये देखना पड़ेगा उस समय किस तरह के कपड़े सूट करेंगे, मुझे बहुत सोचना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, कैजुअल से एक हाफ शर्ट पहन के चले गए, बस ऐसे बाल ऐसे करके चले गए, जूते भी हमने मैच नहीं किए हैं, पैंट भी हमारी ऐसे बिना प्रेस है और कोई भी टाई पहन के निकल लिए। ऐसा नहीं है, आपको बहुत ध्यान, कम से कम ऐसी जगहों पे आपको कम आधा घंटा लगाना चाहिए। एंड फॉर दैट रीजन आई अप्रिशिएट द वीमेन, they always know what kind of clothes to be worn at what time। और जब उनके अलग अलग तरीके होते हैं, सुबह अलग हैं, दिन में अलग हैं, शाम को अलग हैं, पार्टी में अलग हैं, वो वेडिंग में अलग हैं, एंगेजमेंट में अलग हैं, तो उनको बड़ा अच्छी तरह से पता होता है। इसलिए हमें उनसे सीख लेना चाहिए। अगर आपके यहाँ फीमेल फैकल्टी हैं तो आप उनसे सीख लेना चाहिए आदमियों को कि डिफरेंट ओकेजन पे डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स कैसे पहनने चाहिए। सो आई अप्रिशिएट वीमेन फॉर दैट बिकॉज दे आर वेरी वंडरफुल इन नोइंग दैट। और एक चीज और भी है, जब भी हम किसी मीटिंग में जाते हैं तो कंजर्वेटिवली ड्रेस करना ज्यादा अच्छा रहता है। कंजर्वेटिवली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि आपको मॉडर्न तरह का नहीं, इसमें हम जैसे अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वीमेन, सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर टेकिंग द इंटरव्यूज दे आर बिटवीन 50 to 60 और 70। उनकी सोच थोड़ा कंजर्वेटिव होती है। वो सोचते हैं कि अगर वो जो इंडियननेस है किसी भी विमेन के अंदर या किसी फीमेल के अंदर, इंडियननेस है, जैसे नेशनल ड्रेस आपकी सारी होती है या आपने सूट पहना और उसके ऊपर जैकेट पहनी है, समथिंग लाइक दैट, तो आप पहले नंबर में आपका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि वो ये सोच के चलते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा संजीदा है अपने काम के लिए, ये व्यक्ति बहुत ही ऑनेस्टली आया है, ऐसी कैजुअल एटीट्यूड में नहीं आया, कैजुअल अटायर में नहीं आया। आजकल की जो यंग गर्ल्स हैं वो जब इंटरव्यू के लिए जाती हैं तो आई हैव इंटरव्यूड मेनी ऑफ देम, बट 50% आर रिजेक्टेड द मोमेंट दे एंटर द ऑफिस, दे एंटर द मैनेजमेंट बोर्ड, क्योंकि उनकी उससे लुक से ही पता चल जाता है कि दे आर नॉट वेरी सीरियस। और प्रिंसिपल साहब यहाँ पे बैठे हैं और डॉक्टर विनीता तुली भी बैठी हुई हैं और बाकी जो उस रैंक के लोग हैं वो जानते हैं अच्छी तरह से कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर लुकिंग फॉर। अपार्ट फ्रॉम एलिजिबिलिटी इज नॉट एवरीथिंग, वो तो आपके क्राइटेरिया ठीक है, आप आ गए अंदर, लेकिन उसके बाद वो बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये इसमें लिखा ही हो, आप देख लीजिए। ये चीजें तो एक्सपेंड योर नॉलेज में, इससे ज्यादा अच्छी चीजें बताना चाह रहा था आपको। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं इस मीटिंग के अंदर। ये देखिए, ऑनर योर वर्किंग आवर्स, ये प्रिंसिपल साहब झा साहब मुझे सुन रहे होंगे तो उनको बड़ी खुशी होगी, और डॉक्टर विनीता तुली भी काफी अच्छी कोऑर्डिनेटर हैं तो ये भी सुनो, फैकल्टी को भी सुन लेना चाहिए। आपका वर्किंग आवर्स 9 to 5 नहीं है। 9 to 5 doesn't mean that you arrive at 9 and leave at 5. 9 to 5 आपका काम करने का टाइम है। अगर आपका 9 to 5 ठीक है, आपका कॉलेज है तो आप 10 से 3 भी हो सकते हैं, आप 9:30 से 2:30 भी हो सकते हैं, 9:30 से 4 भी हो सकते हैं, 4:30 भी हो सकते हैं, राइट। ये 9 to 5 आपका काम करने का, शुरू करने का टाइम है। यू हैव टू बी एट योर सीट बाय 9। अगर आपकी पहली क्लास 9 बजे होती है तो यू हैव टू बी देयर इन द क्लास एट 9 o'clock। और 5 बजे का मतलब ये नहीं कि आप 4:55 पे स्टाफ रूम से उतर करके नीचे आ जाएं पंच करने के लिए। आजकल बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया, खैर वो थोड़े दिनों के लिए बंद हो रखा क्योंकि उसमें कोरोना का डर है। तो ये नहीं कि आप 4:55 में नीचे आ जाएं और 5 मिनट तक टहलते रहें, 5 बजे वापस। 5 बजे यू हैव टू गेट अप फ्रॉम योर सीट। इट मीन्स यू वर्क फ्रॉम 9 to 5। और ये जो आप कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, ये इसमें काउंट नहीं होता है, प्लीज रिमेम्बर। ये जो 9 to 5 में ये आपका एक्स्ट्रा टाइम है। आप उस ये जो ऑफिस का टाइम है, आप ऑफिस का टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं। इसका ध्यान रखें कि सोशलाइजिंग एट द कॉफी टी पॉट और ईटिंग ब्रेकफास्ट एट योर डेस्क डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट वर्किंग। ये वर्किंग नहीं है, दिस इज लेजर आवर्स। इसका मतलब 9 to 5 में आपने 1 घंटा इसमें दूसरे लोगों के साथ बैठने में, गप मारने में लगा दिया।
आप कहते हैं मैं 5 मिनट रिलैक्स कर रहे हैं, 5 मिनट्स मे नॉट सीम लाइक मच टू यू, लेकिन अगर 5-5 मिनट 30 लोग रिलैक्स करते हैं तो 150 मिनट आपके खराब होते हैं, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी प्रोफेशनल एटिकेट्स में आता है, हम इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। स्पेंडिंग 10 मिनट्स ऑन अ पर्सनल फोन कॉल, प्लीज रिमेंबर दैट, जब आपका कोई कॉल आता है वो पर्सनल है, तो दैट मीन्स यू आर आल्सो वेस्टिंग द टाइम ऑफ योर मैनेजमेंट, टाइम ऑफ योर फ्रेंड्स, टाइम दोज हु आर वर्किंग विद यू, time of your colleagues, time of your principal, time of your management, time of your seniors and juniors। 10 मिनट तक आप अगर एक कॉल पे लगती हैं तो आप देखिए 7 दिन अगर आप काम करती हैं, 6 दिन काम करती हैं तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटा आपने कॉल पे लगाया, और 1 घंटे का 6 दिन में आपने 1 घंटा खराब किया, तो आपने कम से कम 30 दिन में आपने कितने खराब कर लिए, मेरे ख्याल से 6 चौके 24, तो 24 घंटे के ऐसे कुछ आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, 6 घंटे के करीब आपके खराब हो जाते हैं। तो ये जो पर्सनल फोन कॉल्स आती हैं, कुछ लोग लगे रहते हैं पर्सनल फोन कॉल पे, ये इसको भी आप देखें, दिस इज वेस्टिंग ऑफ योर प्रोफेशनल एटिकेट्स। आप मुझे बता दीजिए डॉक्टर झा कि ये 1 ही घंटे चलेगा प्रोग्राम या आगे भी बढ़ सकता है, नहीं तो फिर क्योंकि महेश शर्मा ने भी बोलना है और 1 घंटे के बाद अगर आपका प्रोग्राम वो जूम वाली जो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, प्लीज लेट मी नो समवन। Yes, sir, it's a 24-hour. We can. ओके, थैंक यू। इसका मतलब मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। हाँ, but we have time constraint in the sense कि around 1.5 hours. We'll not extend up beyond 1.5 hours. Sir. अच्छा जी, ठीक है, राइट, थैंक यू। The entire session, sir, 1.5 to 2 maximum. Okay. So I hope I'll be able to finish within 10 minutes, ताकि महेश सर भी आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेशन बनाया उन्होंने ऑन प्रोफेशनल एटिकेट्स, तो वो आपको फायदा पहुंचाएंगे। ओके, सो इसमें आगे चलते हैं। बी फ्रेंडली। देखिए क्या होता है जब कोई नई फैकल्टी आपके यहाँ ज्वाइन करते हैं, नया व्यक्ति ज्वाइन करता है, वो लोगों से मिलता नहीं है, वो सोचता है कि पुराने लोग आकर के उसको बताएंगे। दिस इज टोटली नॉट डन। यू आर न्यू, यू हैव टू गो टू एवरीवन। आप ये ना सोचें कि मैं क्यों जाऊं, मैं भी तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हूँ, वो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, मुझे भी सिलेक्शन हुआ है, मैं भी काबिल हूँ, ऐसा नहीं चलता। ये आपको मिल गई है जॉब, लेकिन उस जॉब में अच्छे ढंग से रहना और लोगों के साथ बीच में रहना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लोगों के ऊपर नहीं। सो यू हैव टू गो टू द पीपल, you have to try to understand the duties, you have to try to understand the procedures, you have to show where to get the information from, and all these things you have to go to your senior, you have to go to ask your principal कि सर मैं नहीं हूँ, तो प्रिंसिपल बताएंगे आपको, आपके सीनियर बताएंगे कि आप इस व्यक्ति के पास जाइए, वो आपकी सहायता करेगा। लेकिन अगर आप वो फ्रॉग इन दी वेल, वो खूब मंडूक बन के बैठे रहेंगे, कुएं का मेंढक बन के बैठे रहेंगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप मैंने देखा है कि कई लोग लंच भी अकेले करते हैं। हाँ, साथ में इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छा खाना बनाते हैं, इसलिए खाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन लंच इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गेट टू नो ईच अदर। अगर आप लंच साथ में करते हैं, मतलब ये नहीं 20-25 लोग एक साथ करें, बट मेरे ख्याल से अगले 1 साल तक तो कोई भी साथ में नहीं करेगा लंच, बट फिर भी 4-5 लोग करते हैं, तो वहां पे भी आप पर्सनल बातें ना करें, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमारे दोस्त बन गए, पर्सनल बातें करते हैं, वो पर्सनल बातें पता नहीं कहाँ तक पहुंचती हैं, ऊपर तक पहुंचती हैं कि देखो आज इसने ये कहा, उसने कहा। दैट लूजेस योर प्रोफेशनलिज्म। ये आपकी जो कैरेक्टर है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसमें ये खतरनाक है। ओके, आप जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है अपने घर की या अपने स्पाउस की, अपने बच्चों की, ये शेयर ना करें। हमारे साथ बहुत सारी चीजें, हम खास करके हमारी जो फीमेल कोलीग्स हैं, वो बड़े अच्छे दिल की होती हैं, वो जो भी उनको कष्ट होता है, दुख होता है, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेती हैं। कोई बुरी बात नहीं, शेयर करना चाहिए, मैन ऑल्सो शेयर, बट रिमेंबर whom you are sharing to। आप किसके सामने शेयर कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है धीरे धीरे करके उस समय इस्तेमाल की जाएगी जब आपका उस ग्रुप से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, उस ग्रुप के साथ कोई दोस्ती नहीं रहेगी, तो वो ग्रुप जो है आपके इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर सकता है, और यही इन्फॉर्मेशन जो है हो सकता है मैनेजमेंट तक भी जाए, आपके प्रिंसिपल तक जाए। हो सकता है ये बड़ी हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन दैट कैन बी डेंजरस फॉर द प्रोफेशनलिज्म, इसलिए आप इसका ध्यान रखिए, राइट। ओके, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप पढ़ सकते हैं इसको, ये मैंने आपको बता ही दिया। ओके, ये देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। When your manager makes a decision, give your wholehearted support to it, at least in front of others.
later you approach him separately with you. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैडम. अभी डॉक्टर तुली ने मुझे शायद रिस्पॉन्ड किया था, डॉक्टर तुली, विनीता तुली, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि जब हमारे प्रिंसिपल मीटिंग लेते हैं, हमारी हमारे डायरेक्टर मीटिंग लेते हैं, या हमारे बॉस लेते हैं, मैनेजर लेते हैं, सीनियर लेते हैं, उस समय हम क्या करते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन बाहर आकर के उसके बारे में ना वी स्टार्ट टॉकिंग बैड थिंग्स अबाउट दैट, या फिर उसी मीटिंग के अंदर भी हम उनको उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं. ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई मैनेजर डिसीजन ले रहा है वो अपनी तरफ से नहीं ले रहा है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन ले रहा है, पूरे मैनेजमेंट की तरफ से उसको सपोर्ट होती है. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज. Whenever a principal is taking any decision, he is not taking the decision single soul heartedly. वो हमेशा उसके पीछे बहुत सारी ताकतों का हाथ होता है जब वो डिसीजन लेता है, क्योंकि वो डिसीजन लेने से पहले उसको सबको पता होता है ऊपर तक कि ये वाला डिसीजन लिया जा रहा है. इसलिए आप उसको होल हार्टली सपोर्ट करें. उस समय ये ना सोचे कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मैं प्रिंसिपल से ज्यादा मुझे विद्वता आती है, मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, प्रिंसिपल ने ये गलत बोल दिया. ठीक है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी कैन से समथिंग रॉन्ग आल्सो, या प्रिंसिपल ने डांट दिया या शाउट कर दिया या कुछ कर लिया, तो ये वो चीजें हो जाती हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है. लेकिन आप उसमें अगेंस्ट ना जाएं. अब आप कहेंगे ये तो डेमोक्रेसी का वो हास हो जाएगा, आप जाइए, लेकिन आप कह सकते हैं आई एम सॉरी सर, आई एग्री टू डिसएग्री विद यू, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, उसको थोड़ा सा और अच्छे, ये ना गए सॉरी आई डोंट बिलीव व्हाटएवर यू सेइंग, दिस इज नॉनसेंस. ऐसा नहीं, आप बोल सकते हैं सर आपने बड़ा अच्छे तरीके से समझाया, लेकिन मे बी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, प्लीज एक्सप्लेन दिस इफ यू हैव टाइम, अदरवाइज आई कैन ऑलवेज कम लेटर ऑन टू यू. तो मुझे कोई समस्या नहीं है, आप बता दीजिएगा. योर प्रिंसिपल विल बी वेरी हैप्पी, योर डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, योर सीनियर विल बी वेरी हैप्पी. तो ये आप इसका ध्यान रखें कि जब भी आपका बॉस, आपका मैनेजर, आपका प्रिंसिपल, आपका डायरेक्टर, आपका सीनियर कोई डिसीजन लेता है, वो अपने आप नहीं लेता वो डिसीजन, उसके पीछे बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही होती हैं, बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं. अगर आप प्रिंसिपल को सपोर्ट नहीं कर रहे उसके डिसीजन, इसका मतलब आप बहुत सारे लोगों को के अगेंस्ट जा रहे हैं, और वो गलत बात होती है. राइट, तो ये आप पढ़ लीजिए, बड़ा अच्छा है ये पॉइंट. ओके, आपने पढ़ लिया होगा. ये भी आप पढ़ लें, इसको भी कोई ज्यादा देने की जरूरत नहीं. मैं आपको कुछ और अच्छी चीजें बताना चाह रहा था. कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. दो लोगों के बीच में जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और जैसे वो कम्युनिकेशन को रोक लेते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है. दे स्टार्ट गेटिंग एनॉयड, दे स्टार्ट बैकबाइटिंग. इसलिए whenever there is a problem, please communicate, express yourself. If you are not happy with someone, please go to him or her. उसको कहो कि I am not happy with your this act of deed. Please help me in getting out of this problem because I am suffering a lot. और मुझे पता है कि आप मेरी सहायता कर सकते हैं. तो जैसे आप उस व्यक्ति को कहेंगे, that person will be very happy. इसलिए आप इसका ध्यान रखें हमेशा. Okay. और एक चीज का और ध्यान रखें, when a principal takes a decision, वो अपने डिसीजन पे कायम रहता है, क्योंकि उसको सिर्फ अपना नहीं सोचना होता है, उसको आपका भी सोचना होता है, उसको हर उस व्यक्ति का सोचना होता है जो उसमें इन्वॉल्व है, उस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है. तो उसको अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है कोई भी डिसीजन लेने में. When he takes the decision for the whole, not for himself only, वो सभी के लिए डिसीजन लेता है. इसलिए आप उसका ध्यान रखें कि इसके लिए आप कभी भी डिस्टर्ब ना फील करें. ओके, राइट, ये इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं. हाँ, एक चीज और है, जब भी आपकी गलती होती है तो आप क्या करते हैं, अपनी गलती नहीं मानते. बड़ा सिंपल सा है, यू जस्ट से ओके आई मेड अ मिस्टेक, I'll see that in the future this is not happening. लेकिन you have made a mistake and I know the truth, but you are telling a lie, and your boss will certainly enjoy that he knows the truth and you are telling a lie. इससे आपकी छवि खराब होती है, ऐसा ना होने दे. आपकी गलती है, योर प्रिंसिपल सेज ये आपने गलत किया है, आई एम नॉट हैप्पी विद यू. आप कह सकते हैं सॉरी सर, आई विल टेक केयर नेक्स्ट टाइम, प्लीज गाइड मी व्हाट टू डू. मतलब खत्म कहानी, हम लोग बढ़ाते रहते हैं आगे. ओके, ये छोड़ देते हैं. मिस्टर महेश, मुझे बता देना जिस पे आपने शुरू करना है, सो आई विल स्टॉप दैट. ओके, राइट सर. राइट, ये देखिए, ये बड़ी अच्छी चीज है, बी असर्टिव बट नॉट एग्रेसिव. आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखिए, लेकिन एग्रेशन से नहीं. असर्शन क्या होता है, इट इज एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर द सिचुएशन एट हैंड. लेकिन एग्रेशन होता है जब आप ओवर पावरिंग हो जाते हैं, फन अब्यूसिव हो जाते हैं, आपका बिहेवियर बड़ा गंदा हो जाता है.
तो ये नहीं लाना। इट्स रूड, क्रूड एंड अग्रेसिव, ये दूसरों के लिए बड़ा प्रॉब्लम खड़ी करता है। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें, इसका आप ध्यान रखें। और ये भी छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं, ओके, ये भी छोड़ देते हैं, ये ओके, ये भी छोड़ देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। गेटिंग अलोंग विद द बॉस, आप अपने बॉस के साथ किस तरह से अच्छे ढंग से काम करें। बॉस मैं मैनेजर्स के लिए कह रहा हूँ, मैं डायरेक्टर्स के लिए कह रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल्स के लिए कह रहा हूँ, ये आप इसका ध्यान। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर बॉस। सी, इट इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ योर बॉस टू अंडरस्टैंड यू। आपके बॉस को आपके लिए नहीं रखा गया वहाँ। ये बड़ी ही क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आज आपको। योर प्रिंसिपल, योर डायरेक्टर इज नॉट मेंट फॉर यू। योर प्रिंसिपल डायरेक्टर इज मेंट फॉर द कॉलेज, फॉर द मैनेजमेंट। वो कॉलेज के लिए रखा गया, आपके लिए नहीं रखा गया। पहली बात आप कहेंगे ये क्या बात है, हिमालय ने रखा गया, आपको उनके लिए रखा गया। प्लीज रिमेंबर दैट। अगर आप ये सोचते हैं कि प्रिंसिपल आपके लिए रखा गया, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात। प्रिंसिपल इज देयर टू टेक केयर ऑफ द कॉलेज इंटरेस्ट। उस कॉलेज इंटरेस्ट में आप भी आ जाते हैं। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड योर बॉस, उसके कार्य करने की प्रणाली को समझें, उसके कार्य करने के तरीके को समझें, उनके बिहेवियर को समझें। इस व्यक्ति ने अपने प्रिंसिपल के, अपने डायरेक्टर के, अपने बॉस के, अपने मैनेजर के बिहेवियर को समझ लिया ना, वो कभी भी पीछे नहीं रह सकता। इसलिए आपने देखा होगा जो भी आपके बॉस की टीम में है, वो ऐसे लोग हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, जिनको बातचीत करने की कला आती है, जिनको गुर आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करने के तरीके आते हैं, और वो आपकी टीम में। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, नो प्रिंसिपल, नो डायरेक्टर विल टेक अनग्रूम्ड पीपल। जो लोग पहले से ही ट्रेंड होते हैं ना, हर व्यक्ति उनको रखना चाहता है, अनट्रेंड लोगों को ही रखना नहीं चाहता। नोबडी वांट्स टू वेस्ट हिज और हर टाइम ऑन अनट्रेंड पीपल। जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको मान लीजिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं आती, वो क्यों रखेगा कोई? मैं तो नहीं रखूंगा। लेकिन अगर किसी को आता है तो मैं आई विल टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि वो बहुत सारे काम कर रहा है, कॉलेज के लिए भी कर रहा है, प्रिंसिपल के लिए जो प्रोफेशनल काम है वो भी कर रहा है, राइट। तो प्रिंसिपल इज देयर टू डिसाइड फॉर द कॉलेज, नॉट फॉर सिंगल पर्सन और फॉर इंडिविजुअल पर्सन। इसलिए आप इसका ध्यान रखें कि you have to try to understand your boss. You have to try to understand the ways and techniques and personality and character and habits and all kinds of things. आपको उनकी बैकग्राउंड जानना जरूरी है, किस तरह का व्यक्ति है, कब ये डिसीजन लेता है, कब ये डिसीजन नहीं लेता है, कब ये आपके लिए अच्छा सोच सकता है, कब ये गुस्सा हो सकता है, कब ये गुस्सा नहीं होगा या होगी अगर वो प्रिंसिपल लेडी है। ये सारी चीजें अगर आपने समझ ली ना, तो आपको ना आपके दोस्तों के साथ लड़ाई होगी, क्योंकि योर प्रिंसिपल इज विद यू, यू डोंट हैव टू फाइट विद एनीवन। हम किसी के साथ लड़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है हमारे प्रिंसिपल तक बातचीत पहुंच जाएगी, हमारे डायरेक्टर तक बातचीत पहुंच जाएगी। आपको पता है कि योर प्रिंसिपल इज अ गुड पर्सन एंड ही ऑलवेज डिसाइड्स इन अ प्रॉपर मैनर। वो आप फिर कोई कितनी शिकायत कर ले आपकी, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो बॉस हैं वो ऐसे हैं, तो आप आराम से जा सकते हैं। आपको ठीक है, शिकायत कर दीजिए, माई बॉस विल टेक द राइट डिसीजन। इसलिए आप इसका ध्यान रखें। ओके, ये और आपके जो बॉस हैं वो वेल इक्विप्ड हैं, सारी इन्फो, जैसे प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है पूरे इंडिया के अंदर, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो सारे के सारे IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर, उनको खबर देते हैं। तो ही इज द बेस्ट पर्सन इक्विप्ड इन इन्फॉर्मिंग द नेशन। इसलिए विपक्ष वाले कहते हैं प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते, प्रधानमंत्री कुछ, क्योंकि उनके पास पूरी खुफिया जानकारी होती है। इसी तरह से आपका जो बॉस है, प्रिंसिपल है, उसके पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। उनके पास जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, उन सबकी कुंडली होती है। उसको पता है A क्या कर रही है, B क्या कर रहा है, C क्या कर रही है, D क्या कर रहा है, वो उसका किसके साथ क्या सिस्टम चल रहा है, कैसा है। तो ये सारी की सारी चीजें आप देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस यही चीजें थी, बाकी तो आप पढ़ सकते हैं। ओपन कम्युनिकेशन मैंने आपको बता ही दिया। मैं आपको 2-4 चीजें बताना चाहता हूँ, बस इसको देख लें, ये अलग से है। Please give people full attention when you are talking to the people. Have eye-to-eye contact. Don't use phones in meeting. जब आपकी प्रिंसिपल के साथ मीटिंग चल रही है, मैनेजमेंट के साथ मीटिंग चल रही है, बड़े ऑफिस के साथ मीटिंग चल रही है, अपने फोन को बिल्कुल यूज ना करें। हम लोग सोचते हैं क्या है, प्रिंसिपल ये देख नहीं रहा होगा, तो फोन अपना चालू रखते हैं या नीचे चैट करते रहते हैं। लेकिन जो आदमी डायस पे बैठा हुआ है, स्टेज पे बैठा, उसको हर कुछ दिख रहा है, उसको एक एक आदमी का पता होता है वो क्या कर रहा है। somebody is yawning like this, somebody is doing like this। तो आप प्लीज इसका ध्यान रखें, स्टॉप चैटिंग। आप पहले तो मीटिंग में फोन लेके बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि जैसे ही फोन बजेगा और फोन आपका बजता है तो इट डिस्टर्ब्स अ लॉट, ठीक है। और इसमें आप देखें, whenever you are saying something, use please and thanks। use please and thanks जब भी कोई आपके लिए हेल्प करता है, तो
तो आप उसका ध्यान रखेंगे। ओके, और जब भी आप किसी से हाथ मिलाते हैं, आपको हाथ मिलाना बंद कर देना चाहिए, लेकिन हैंडशेक आपका फर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको खुशी नहीं मिलके, अगर आप हैंडशेक करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। ओके, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ प्रोफेशनल एटिकेट्स बड़े ऑफेंसिव होते हैं। ऑफेंसिव क्या है? मीटिंग के अंदर फोन का बज जाना, ये ऑफेंसिव है। और ऐसी मोबाइल टोन का लगा के रखना जिससे कि एकदम से पूरे के पूरे मीटिंग के अंदर हड़कंप बज जाए। आजकल ऐसी ऐसी मोबाइल टोन है कि आपको तो मजा आ रहा है लेकिन दूसरे को मजा नहीं आता, इसलिए सॉफ्ट टोन रखें, इतनी सी रखें कि वो आप ही को सुनाई दे, सिर्फ ध्यान रखें। ओके, सो failure to display proper professionalism is the last nail in the coffin. इसलिए इसका आप ध्यान रखें, ऐसा कुछ भी ना करें। और जब आप मोबाइल फोन पे बात करते हैं अपने प्रिंसिपल साहब के साथ, ये अज्यूम ना करें कि उनको पता है कि कौन बोल रहा है कौन बोल रही है। तो आप हमेशा अपनी आवाज का ध्यान रखें, आपकी आवाज क्लियर जानी चाहिए उस तरफ। आप ये बोलें, हेलो शर्मा दिस साइड। आप शर्मा भी बहुत सारे हैं, उनको पता नहीं आप कैसे हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, आई एम अनिल प्रकाश शर्मा दिस साइड। तो आप उनको वेट ना करें कहने के कि वो कहेंगे हेलो कौन बोल रहा है, तो ऐसे नहीं आना चाहिए। इसके लिए भी आप हमेशा ध्यान रखें कि जब आप फोन कॉल करते हैं अपने बॉस को या अपने दोस्तों को, ये आप जरूर बोलें हेलो विनय दिस साइड। तो ये बोलना जरूरी है, वरना हेलो हाउ आर यू, कैसे हो भाई, क्या चलो, उसको पता ही नहीं चल रहा कौन बोल रहा है। ये भी एक एटिकेट के अंदर आता है, इसका आप ध्यान रखें प्लीज। बट व्हेन यू आर टॉकिंग बी कर्टियस, तो ताकि आसपास के लोग आपकी आवाज को सुन के डिस्टर्ब ना हो। और अगर आप कहीं स्टाफ रूम के बीच में है तो आप उठ करके बाहर निकल जाएं, वहीं पे अपनी पूरी कहानी सुनाना ना शुरू कर दें अपने दोस्तों के सामने। सम पीपल डू अ लॉट ऑफ शो ऑफ, वो शो ऑफ करते हैं कि देखो मेरे को घर से फोन आ रहा है, यहाँ से फोन आ रहा है, हम तो इतने खुश हैं। प्लीज इसका ध्यान रखें, ये बड़ी डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम हो जाती है। और अपने जो फोन्स हैं उनको बिल्कुल ना लेके जाएं मीटिंग में, म्यूट रखें उनको, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें और क्या, मीटिंग के बीच में कॉल भी ना लें कभी भी, प्लीज डू नॉट टेक द कॉल्स ड्यूरिंग द मीटिंग। और तीसरी बात यह है कि डोंट टेक पिक्चर्स इवन ऑफ योर कलीग्स विदाउट देयर परमिशन। कुछ लोग जब किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी सेमिनार में जाते हैं, वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं, जो डिग्निटरीज होते हैं, उनके पास जाके कहते हैं सर एक पिक्चर प्लीज, एक पिक्चर प्लीज। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज आस्क देम कैन वी हैव वन पिक्चर, वन फोटोग्राफ विद यू। अगर वो कहते हैं ओके, तो तब, वरना हम क्या करते हैं, चिपक जाते हैं उनके साथ जाकर के और फोटो खिंचवाना शुरू करते हैं। हम किसी होटल के अंदर जाते हैं, होटल की फोटो खींचना शुरू कर लेते हैं, हम ये मान के चलते हैं हम होटल में हैं, फोटो खींच सकते हैं। बट प्लीज डू आस्क द पीपल ओवर देयर कैन वी क्लिक अ फोटोग्राफ। कहीं पे भी, जैसे मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे हैं, तो पहले पूछ लेना चाहिए हम फोटो खींच सकते हैं नहीं खींच सकते हैं। बाद में वो आपको डांट दे क्या फायदा है, यही आपके ऑफिस में भी चलता है। ओके, इसका ध्यान रखें। और व्हेन यू आर टेकिंग मेल्स प्लीज डू नॉट यूज द फोन्स। ये भी आपके प्रोफेशनल एटिकेट में आता है, क्योंकि आप लोग खाना खा रहे हैं बैठ करके, उधर से आप फोन कर रहे हैं तो दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। बस ये सारी चीजें थी, इसका आप ध्यान रखें, आपको बहुत मजा आएगा। एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। एंड और इसके बाद मेरे ख्याल से आप वो पूछेंगे, ये छोड़ देते हैं। आई थिंक आई हैव डन। हैव आई डन महेश? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये आप, हाँ एक लाइन और बोल देता हूँ मैं। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे जो कलीग्स हैं उनके पास जाते हैं और वो कलीग्स जो हैं अपने लैपटॉप पे लगे हुए हैं, एंड कलीग इज वेटिंग फॉर यू, कैन यू हेल्प मी दिस, एंड द कलीग इज नॉट गिविंग अटेंशन टू दैट। आपको तुरंत अपने लैपटॉप से ध्यान हटा करके अपने कलीग की तरफ देखना चाहिए। आप पूछ सकते, आप पूछे हाँ जी कैन आई हेल्प यू, तो कहेंगे अगर आप हेल्प कर सकते हो उसी में कर दें, नहीं तो आप कह सकते हैं ओके आई विल कम टू यू इन 10 minutes, प्लीज वेट। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो ये प्रोफेशनल एटिकेट में बड़ा मजा आएगा। और दूसरी बात, प्रिंसिपल के कमरे में ये सोच के ना जाएंगे प्रिंसिपल इज वेरी फ्रेंडली विद यू, तो आपने दरवाजा खोला निकल गए। आपको पहले नॉक करना चाहिए, उसके बाद आपको मे आई कम इन सर कहना चाहिए, और प्लीज वेट फॉर हिज कॉल, हिज और हर कॉल। हम क्या करते हैं, नॉक भी नहीं करते हैं, दरवाजा खोल करके अंदर घुस जाते हैं, आधा अंदर घुस जाते हैं, फिर कहते हैं। और एंड डोंट सिट इन द चेयर अनटिल अनलेस द प्रिंसिपल सेज टू सिट, क्योंकि अगर उनको बिठाना होगा तो बिठा देंगे, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं। अगर 10 मिनट आप ही को बिठाने लग गए, फिर अगर उन्होंने चाय पूछ ली तो प्लीज चाय के लिए हाँ ना कहें, क्योंकि चाय अगर आप पीने लग गए तो 10 मिनट चाय लाने में आएंगे, 10 मिनट चाय पीने लगे, आधा घंटा तो आप ही के साथ लगा दिया उन्होंने, पता चले बाहर 15 लोग बैठे हुए हैं। until unless there is a plenty of time। तो ये ध्यान रखें आप।
आप कहेंगे वो पूछे कोल्ड ड्रिंक लोगे या चाय, आप कहेंगे कोल्ड ड्रिंक कैंटीन में आने में 15 मिनट लग जाते हैं, तो इसका मतलब ही हैज यू हैव वेस्टेड हिज 30 मिनट्स। सो प्लीज ध्यान रखें, पानी के अलावा डोंट से एनीथिंग। पानी पी सकते हैं अगर आप वाकई आपको बहुत प्यास लगी है, यू आर इन ट्रबल, तो ये ध्यान रखें जब आप अंदर जाते हैं ऑफिस के अंदर, और जब आप स्टाफ रूम में भी जाते हैं वैसी चेयर लेके ना खींच के बैठ जाएं, पता चले आप किसी की चेयर पे बैठ गए हैं। अगर वहां पे लोग हैं तो उनसे पूछ लीजिए कैन आई सिट इन दिस ऑन दिस चेयर। तो ये प्रोफेशनल एटिकेट्स हैं, ये हम सबको पता है लेकिन वी डोंट डू इट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मैंने कम से कम 50 मिनट लिए हैं, बस मुझे इतना ही था कि मैं 45-50 मिनट में कर दूंगा खत्म। Over to Dr. Vinita Tulli, ma'am. Thank you, ma'am, for giving me this chance. Thank you. Thank you, sir, for an interesting session. We are going to take the question answers later on. Is it fine, sir? जी, no problem. Please. मैं इसको शेयर करके रखूं महेश, आप करेंगे? सर मैं करता हूं सर। Okay, I will stop sharing then. Yes sir. Okay, let me see. Okay. Is that done? हाँ जी सर। Okay, thank you. Thank you, sir. Mr. Mahesh Sharma, Dean Students Welfare and IQAC Coordinator at IIMT. He's a spiritual speaker, author, poet, and writer. He is pursuing PhD from Sunrise University, Alwar in computer science. Mr. Mahesh Sharma has done Masters in Computer Science and MCA with a teaching and industry experience close to 13 years. He has also worked with Delhi University as a computer science faculty member. He also writes travelogues, poetries, shairis, etc. He's a motivational speaker and has been mentoring and motivating students since last 10 years. Has been a jury member and guest of honor in beauty pageant shows in different colleges. An editor with the IndusScience Publishers Limited. He has been honored with an award for heading and driving the multi-client chat engine, Pride of the Institute for the year 2014-15 at IIMT, also in 2016-17, 2017-18, and 2018-19 as well. And also he has also been awarded the Excellence of the Institute Award. Has been a project guide supervisor to the students pursuing BCA and MCA. He has held many administrative posts as well. Dean Students Welfare, DBA, Ideal Student Council President, Executive Member in Academic Council of IIMT, and many more. He has authored a textbook on Management Information System with Professor Anil Prakash Sharma. He has published 10 research papers in journals of repute. Thank you, sir, for accepting our invitation. And now I invite you to speak on the topic. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Vinita ma'am. Thank you so much, Gyabot sir. Thank you so much, Professor Dr. Anil Prakash Sharma, Director IIMT. Ma'am, may I start? Yes, sir. Thank you, yes, ma'am. sir. Please start. So, sir has left with so many of the professional things. So, I'm going to start with some professional etiquettes. So, a set of customs, formal governing rules, which are socially acceptable for polite behavior in society or particular profession. Actually, I'll tell you one thing, you all, that respect is respect and love. Both elements are not earned by any title. People used to call me sir. People used to call you ma'am. Actually, these elements are earned by behavior. अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपको लोग प्यार ही नहीं करेंगे, आपकी इज्जत भी करेंगे और आपको बहुत हर चीज में आपको प्रायोरिटी अपने आप मिलने लग जाती है. Why etiquette is required? Professional etiquette was for career, for building leadership skills, quality, business and career, and it refines skills needed for exceptional services. आपके भी सर ने इतनी सारी चीजें बताई आपको कि आप कभी डायरेक्टर ऑफिस में जाते हैं या एक डायरेक्टर की टीम के मेंबर होते हैं तो वहां पर आपको किस तरीके से उठना बैठना होता है, किस तरीके से बात करनी होती है, वहां पर आपको अगर कुछ ऑफर किया है तो किस तरीके से होता है. एक एक चीज, each and everything is being noticed by each and every person. If you are in the director's cabinet, if you are in the director's
डिपार्टमेंट, आई मीन डायरेक्टर की अगर आप टीम के मेंबर हैं तो सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशन है या कॉलेज बोलूंगा उनकी नजरें आपके ऊपर टिकी होती है। अब वो बस आपकी एक गलती का इंतजार कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, डायरेक्टर बट द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन नोज एवरीथिंग। अब साथ के साथ में अगर एटिकेट्स की बात करें, जो आपके कलीग्स के साथ आपका व्यवहार होता है और आपका बिहेवियर होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वेयर टू स्पीक व्हाट, दैट डिफाइंस एग्जैक्टली व्हाट यू आर। कहां पर बैठ के आप क्या बातें करते हैं, क्यों कर रहे हैं वो बातें, कैसे बातें कर रहे हैं, किन शब्दों का यूज कर रहे हैं। दिस कलेक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ योर वर्ड्स along with the tone you choose defines you what you are. But what we are, हम सारा का सारा उल्टा करते हैं। जब आपको बोलना नहीं आता, जब आपको यही नहीं पता कहां पर क्या बोलना, तो उसके बाद क्या होता है, हमारे दायरे बहुत ही लिमिट होने लग जाते हैं, बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। और जैसे हम खुद होते हैं, हम वैसी दुनिया को देखने लग जाते हैं, वैसे हम आसपास लोगों को चूज करते हैं। सीधी सी बात है। लॉर्ड बुद्धा ने भी बात बोली है कि जैसे आप खुद होते हैं वैसी आपको दुनिया दिखने लग जाती है। Now, social and business etiquette can be tricky, and making the right moves can make a big difference. देखिए, एक चीज छोटी सी बताता हूँ, अभी ये प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा सा सभी के साथ। आप चैट बॉक्स में चाहे तो जवाब दे सकते हैं। देखिए, ये ट्रिकी क्यों बोला, ये बिजनेस और सोशल एटिकेट्स ट्रिकी क्यों बोले, कहाँ पर क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना होता है, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि अगर हमें बोलना नहीं आएगा तो हमारा सोशल जो हमारी ग्रोथ है वो मुश्किल हो जाती है, काफी हद तक रुक जाती है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसका जवाब बाद में, पर मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका जो जवाब है चैट बॉक्स में देना। माय बॉस मिस्टर मानी enters the room when I'm meeting with an important client. Excuse me, Mr. महेश शर्मा, आपकी ना तो पिक्चर आ रही है, ना आपकी स्क्रीन पे ना वो मटेरियल नहीं आ रहा कुछ भी। ओके सर, एक्चुअली मैंने तो शेयर किया था। एक मिनट सर, एक मिनट। इट्स नॉट कमिंग, जस्ट अ मोमेंट सर। क्योंकि चैट बॉक्स में सभी लिख रहे हैं कि आपका वीडियो भी नहीं आ रहा और आपका वो भी नहीं आ रहा है। आप आ रहे हैं, लेकिन आई एम सॉरी डॉक्टर तुली टू इंटरवीन इन बिटवीन, बट वो चैट में मैं पढ़ रहा था तो इसलिए मैंने बोला। थैंक यू सर। इज इट विजिबल नाउ? यू आर विजिबल नॉट, बट योर मटेरियल इज नॉट विजिबल। सर, आई हैव शेयर्ड दिस। एक मिनट सर, एक मिनट। शुड आई शेयर? जस्ट अ मोमेंट सर। Sir, it's showing an error onto my screen. Could you please, sir? I'll check. Please, am I the host now? Yes sir, co-host. Okay, let me try. Is this visible? Yes sir, yes sir. Yeah, sir, PPT number 60 sorry 70th. ये तो मुझे पता नहीं। Okay, yes, मैं I'll check. Yeah, 73rd sir, 73rd. Okay. ये आप मुझे बता देना क्योंकि इसमें नंबर दिख नहीं रहा मुझे। हाँ जी, मैं बता दूंगा। ये वाला? और सर इसके आगे एक और सर। राइट। बस सर, बस। Thank you so much, sir. Thank you so much. I was not able to see all those things. Thank you so much. So my boss, Mr. Ambani, enters the room when I'm meeting with an important client, Mr. Desai. I rise and say, Mr. Ambani, I would like you to meet Mr. Desai, our client from Mumbai. Is this introduction correct? Kindly answer in the chat box, please. Okay. I can see, oh my God. Very nice. Okay, let's move with the answer of this. Sir, can we have next slide, please? Sir, next slide, please. Right, sir. Now, introduce the most important person first. You should address your client and say, Mr. Desai, I would like you to meet our Vice President of Development, Mr. Ambani. Or alternative answer, introduce the client with the most important. Basically, what is happening here? What is happening here? Actually, we don't know where to speak what. आप किससे क्या बातें कर रहे हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं, आपको क्या बोलना चाहिए, वही चीज है। अब आगे चलते हैं। आगे वाली स्लाइड में at a social function,
I have met the CEO of an important corporation. After a brief chat, I give him my business card. Is this correct? Kindly answer in the chat box, please. Is this correct? At a social function, I have met the CEO of an important corporation or organization. After a brief chat, I give him or offer him my business card. Is this correct? Okay. आगे चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर. आप छोटे हैं, आप अगर ओहदे में छोटे, जो चेयर के इस साइड जो इंसान बैठा है, इस चीज का ध्यान रखिए, उसका मूड खराब मत कीजिए. जो चेयर के इस साइड बैठा है उसे सब कुछ पता है. उस आपके उस एक जुवेनाइल बिहेवियर से, वो बचकाना हरकत से उसका मूड खराब हो सकता है. आपको बोल सकते हैं, आप जा सकते हैं, सभ्य तरीके से बोल सकते हैं, और अपने अगर चेंबर में अगर बैठे, अपने ऑफिस में बैठे, तो आपको बोल सकते हैं, आप जा सकते हैं. चलिए आगे चलते हैं. सर अगली स्लाइड प्लीज. I'm entering a cab with an important client. I enter first myself and asking the client to seat on my left. Is this correct? देखते हैं, चैट बॉक्स में आप बता दीजिए आप लोग. Okay. Participants are very much active. Thank you so much. आगे चलते हैं, इसका देखते हैं. When a client steps out of the car, he or she will be on the side way and therefore you won't have to deal with getting out in traffic or sliding across the seat. ये सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है. जिस साइड आपका ट्रैफिक मूव कर रहा है, सबसे पहले तो आपको वहां पर अपने बॉस को या आपके जो क्लाइंट है उनको नहीं बिठाना चाहिए. देखिए एक चीज बताता हूँ आपको, आगे चलते हैं, वो बाद में बताता हूँ. आगे चलते हैं. I'm in a restaurant and the thin soap is served in a cup. अगली स्लाइड में, with no handles. To eat it, I should pick it up and drink, use a spoon provided, or eat half of it with a spoon and drink the remainder. आप अपने A, B, C कोई एक आप लिख सकते हैं इसमें, जो आपको सही लगता है. और ध्यान से पढ़ना, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है. Okay. First of all, it is not a cup of coffee. Use a spoon provided. Soup खाया जाता है, ना कि it's not slurp. ठीक है, इसको slurp नहीं करते, इसको पिया नहीं जाता, इसको खाया जाता है, स्पून से खाया जाता है, इसको कॉफी की तरह पिया नहीं जाता. आगे चलते हैं. इसका आंसर बी है, देख लिया आपने. और आगे चलते हैं. I'm at a table in a restaurant for a business dinner. Midway through the meal, I have called to the telephone. What should I do with my napkin? Take it with me. Fold and place it to the left of my plate. Loosely fold it and place it on the right side and leave it on my chair. क्या करना चाहिए मुझे? आप अपने आंसर जल्दी से लिख सकते हैं, कोई एक, ABCD में से कोई एक. ओके, मैक्सिमम लोग बी लिख रहे हैं. आगे चलते देखते हैं इसका आंसर क्या है. लीव इट ऑन योर चेयर, डी. डेफिनेटली you don't put it on the table. What if you have things on it? देखिए कोई उठा के लेके नहीं जाएगा उस चीज को. That is all yours. And I'm next slide में देखते हैं. I'm hosting a dinner party at a restaurant. Included are me and my wife and my most valuable client and his wife. I instruct the waiter to serve my spouse first, serve my client's spouse first, और serve me and my spouse last. इसका आंसर बताइए, A, B, C में से कोई एक, जल्दी से. ओके, देखते हैं इसका क्या है. इसका आंसर बी होना चाहिए. बी क्यों होना चाहिए? देखिए, जो आपके मेहमान के साथ जो आए हैं, वो भी अगर स्पाउस है, तो आप उनको सर्व करना आपको चाहिए. ये एटिकेट्स, प्रोफेशनल एटिकेट्स के बारे में बात कर रहे हैं. चलिए आगे चलते हैं. आई एम इनवाइटेड टू अ रिसेप्शन एंड द इनविटेशन स्टेट्स 7 to 9 PM. In that case,
I should arrive. Sir, next slide, please. Sir, next slide. Okay, sir. Thank you. At 7 p.m., anytime between 7 p.m. and 9 p.m., between 7 p.m. and 7:30 p.m., or go early and leave early. Answer, please. Fast. I'll finish it very soon. Okay, let's see the answer. The answer must be between 7 p.m. or B or C. B और C must be wrong. बीच में आप चले जाइए, 7 और 9 के बीच में आप जा सकते हैं कभी भी. ये 7 बजे पहुंच जाए या फिर बहुत जल्दी पहुंच जाए, 7 बजे पहुंच जाए या फिर 7:30 तक निकल जाए, ये भी गलत है. ये एटिकेट्स में नहीं आता है. अगले इस पे चलता है, अगले क्वेश्चन पे. आई एम ग्रीटिंग और सेइंग गुड बाय टू समवन व्हेन इज द प्रॉपर टाइम टू शेक देयर हैंड. तो सबसे पहले व्हेन आई एम इंट्रोड्यूस्ड एट देयर होम, at their office, on the street, when I say goodbye. Sir, next slide, please. बताइए क्या होगा इसका, आप बताइए चैट बॉक्स में. Okay. Sir, next slide, please. In other words, it is a formal in etiquette to shake someone's hand. ये नहीं बिल्कुल हाथ मिलाया, आपने हाथ मिला के जोर से दबा दिया, ऐसे नहीं. हाथ मिलाने के तरीके होते हैं, प्रोफेशनली हाथ मिलाने का तरीका होता है. ऐसे आपने हाथ मिलाया, धीरे से हैंड शेक किया. हैंड शेक किया जाता, हाथ ऐसे करके दबाया नहीं जाता. हैंड शेक, हाथ पकड़ के ऐसे हिलाने को हैंड शेक बोलते हैं. दोनों के लिए होता है. विमेन से अलग तरीके से हाथ मिलाया जाता है, मेन लोगों से अलग तरीके से हाथ मिलाया जाता है. Sir, next slide, please. So I'm talking with a group of 4 people with whom I should make eye contact. With the person to whom I am speaking at the moment, each of the 4 moving your eye contact from one to another. No one particular person, not looking directly into or anyone's eyes. Answer, please. Okay, next slide, please, sir. अब किसी एक से बात थोड़ी कर रहे हैं. जब आप कभी 4 लोगों से, 6 लोगों से, 10 लोगों से बात करते हैं, सबके साथ आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट टॉकिंग टू सम स्पेसिफिक पीपल और सम स्पेसिफिक पर्सन. प्रोफेशनल एटिकेट्स की बात है. नेक्स्ट स्लाइड, प्लीज, सर. When I greet a visitor in my office, do I say nothing and let him sit where he wishes? Tell him where to sit or say just sit anywhere? Kindly answer. Okay. B is the right answer, indicating where your guest should sit will make him feel more comfortable. ये नहीं कहीं पे भी आया आप बैठ जाओ. कहाँ पर बैठे? ऑफिस बहुत बड़ा है, सोफे भी लगे हुए हैं, चेयर्स भी लगी हुई हैं, छोटे वाले आपके सोफे लगे हुए हैं, वो बहुत नीचे हैं. कहाँ पर बैठेंगे? आप बोलेंगे प्लीज सिट, ऐसे जेस्चर देंगे प्लीज सिट है, इस तरीके से. सर, नेक्स्ट स्लाइड, प्लीज. I've forgotten a lunch with a business associate. I feel terrible and know he's furious. Do I write a letter of apology? Do I need to send him flowers? Do I keep quiet and hope he forgets about it? And do I need to call and set up another appointment? Okay, very good. Let's see the answer of this. Sir, next slide, please. D, call and set up another appointment and don't forget to apologize for your error, for your mistake. Imagine how you would feel if it was you. हमेशा गलती करने से पहले सोच लेना चाहिए. सामने वाले बंदे की तरफ बैठ के आप देख लीजिए अपने आप को कि आप कैसे, वहां पर आपके साथ क्या होता अगर ये सिचुएशन से सेम अगर आपके साथ होती है. आगे चलते हैं. Sir, next slide, please. Basic etiquette. No first talk next. No first talk next का मतलब ये होता है
सामने वाले को बोलने का मौका दीजिए। सामने वाला जितना बोलेगा उसका सही कैरेक्टर सामने आएगा, उसके बाद ही, ये नहीं आप, वरना you'll go judgmental, आप जजमेंटल हो जाते हैं उसके लिए। और जब जहां तक बात है आपके जो सीनियर्स हैं, आपके डायरेक्टर साहब हैं, आपके प्रिंसिपल सर हैं, आपके एचओडी होते हैं, तो सीधी सी बात है, एक हमारे शर्मा सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, प्रोफेसर अनिल प्रकाश शर्मा, इन्होंने एक बार एक बात बोली थी, बहुत अच्छी बात थी, आपके अधिकारी की इच्छा ही उसका आदेश होता है। सी अगर मेरा मतलब मान लीजिए डायरेक्टर आपके प्रिंसिपल सर है, उनका मन कर रहा है कि वो कहते हैं कि यार विनीता मैडम चाय पीने का मन है, तो विनीता मैडम को जैसे या मैं हूँ, मैं सर के साथ मान लो काम करता हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए? ओके सर कोई बात नहीं, चाय पीने चलते हैं, सर चाय ही मंगवा दूं। आपका मन है चाय पीने का, नहीं है वो बात की बात है, बट आपके अधिकारी की इच्छा ही उसका आदेश होता है। थैंक यू सो मच। इसके अगले बस ये है कि थैंक यू, और क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं विनीता मैम को चाहता हूँ वो स्टार्ट कर ले। थैंक यू। Thank you, sir, for this insightful session. Now we'll come to the question answer round. Now, first I'm going to take the first question. जी मैम, please. This is from Apurva Singh. But what if the boss is discriminating on the basis of gender, appearance, etc., rather than the skills and knowledge? This is a very good question, and this is asked in every organization of the world. See, it depends whether boss is male or female, first of all, because there are certain likings and dislikings on the part of the gender also. But let me tell you how you are able to decide that boss is discriminating. First of all, you have to know the facts and figures that boss is discriminating. ये आपको कैसे पता चलता है कि बॉस डिस्क्रिमिनेट कर रहा है? हो सकता है कि आपके जो दूसरा व्यक्ति वो आपसे ज्यादा योग्य है, हो सकता है दूसरे व्यक्ति के अंदर ज्यादा एलिजिबिलिटी है सीखने की, हो सकता है दूसरा व्यक्ति जल्दी फास्ट लर्नर हो, तो आपको ये लगता है कि वो डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये कई बार ऐसा लगता है, पर डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं है, क्योंकि बॉस के पास हमेशा बॉस उस व्यक्ति को अपने पास रखेगा जिस व्यक्ति के अंदर ग्रूम्ड है पहले से ही, जिस व्यक्ति के अंदर ज्यादा योग्यता है, या जो व्यक्ति काम का है। आई एम टेलिंग यू दिस, काम का मतलब है the one who can help the college, the one who can help him also, him or her at the right time. क्योंकि बहुत सारे समय ऐसे लोगों का सिलेक्शन किया जाता है जो रात को भी अगर बॉस उनको कहता है वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको जाना होता है, जैसे एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट जाकर के अब if the boss is male then he will not call a female at 2 o'clock. वो उसी व्यक्ति को बुलाएगा जो रात को 2 बजे भी गेस्ट को या चीफ गेस्ट को, जैसे नेक में इंस्पेक्शन होता है तो वो पता चले फ्लाइट 2 बजे आ रही है, तो उस व्यक्ति को भेजना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो जा सकता है। तो कई बार हमें लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन है, and many times this does happen, but then you have to prove yourself much more capable than the person whom you think that is the cause of discrimination. तो इसका आप ध्यान रखें, इन चीजों में अपने मन को छोटा ना करें, अपने आप को ज्यादा योग्य बनाएं उससे। जिस व्यक्ति के ऊपर बॉस की डिपेंडेंस है, अगर आप उससे ज्यादा अपने आप को योग्य बनाएंगे तो डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, तो आपके डिस्क्रिमिनेशन का जो फियर है वो भी खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Now the another question is from Palak Sen. How can we adjust ourselves? How can we adjust ourselves with people who do buttering always? See, the thing is that are you living with these people who are doing buttering always? The question is, the answer lies in your question. Why to live with such people who are doing buttering always? Number one, you have to find out those people who are honest, who are dedicated, who are hardworking, who are loyal to the organization, who are loyal to you, who are loyal to your friendship, who are loyal to your group. Number one. Number two. Three, if they are buttering and you know they are buttering, then you should not worry because you already know. So you enjoy their buttering. आप उनकी जो बटरिंग है, मशकेबाजी है, उसको आप आनंद मनाएं, उनको लगने ना दे कि आपको पता है। वो भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे। मुझे पता है, there are out of 40 people, 10 or 15 are always buttering, but I know what kind of buttering they are doing, so I do not let them know that they are buttering.
वो करते रहता है, मैं सुनता रहता हूँ, मुझे मजा आता रहता है, वो भी अपना मजा लेते हैं, उनका भी दिल खुश रहता है, मेरे भी रहता है, लेकिन मुझे काम तो उन्हीं को देना है जिन्होंने काम करना है. So I'll be giving the job to only those who are wonderfully doing the work. और वो बटरिंग भी नहीं करते हैं, मैं उनको डांटता भी डपटता मैं, फिर भी वो काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है सब जानबूझ करके डांटते सबके सामने, क्योंकि ताकि किसी को ये ना लगे कि हाँ इन्हीं की तरफ वो फैक्टर जा रहा है इनका ज्यादा. सो बटरिंग करने वालों को बटरिंग करने दो, कम से कम कुछ तो कर रहे हैं वो, otherwise they will not do that also. So let them do the buttering and you enjoy their buttering. बस खुश रहना आपने उनकी बटरिंग से जेलसी फील नहीं करनी है, इनसिक्योरिटी फील नहीं करनी है, इंफीरियरिटी फील नहीं करनी है, डिस्क्रिमिनेटेड फील नहीं करना है. आप अपने काम पे लगे रहिए. अगर आपके ताल्लुकात आपके प्रिंसिपल के साथ, आपके सीनियर के साथ, आपके बॉस के साथ, आपके डायरेक्टर के साथ अच्छे हैं, तो आपको दुनिया में किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है. दिस आई एम टेलिंग यू. क्योंकि हर कोई अपनी अपनी बातें करेगा, लेकिन आप वो व्यक्ति जो सभी के लिए बातें करेंगे. व्हेन यू टॉक अबाउट एवरीवन good things, then nobody will talk bad about you. Thank you. Thank you, sir. The next question is from BR Chitra. How can we maintain healthy balance between personal and professional life? Please state few ideas. Sometimes it happens that our personal stress gives bad impression on our professional activities or at professional place. Very well said. Very well said. See, most of these times in the workplace, personal interaction with your boss, with your friends, with your colleagues, with your seniors, with your managers becomes the cause of your professional derogation, becomes the cause of your professional offensiveness, becomes the cause of your professional demeanors, becomes the cause of your professional disobedience. So the best thing is that whenever you feel such kind of stress, please go to that person who is giving you the stress or who is the cause of your stress. Please go and ask that person. देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो आपको और निकाल देगा बाहर, रिजेक्ट कर देगा. आप जाके बोलिए कि मुझे आपने उस दिन मेरे साथ बातचीत की थी, मैं उस वजह से बहुत दुखी हो रही हूँ या हो रहा हूँ. आप प्लीज डू समथिंग सो दैट आई कैन फील हैप्पी, यू कैन ऑल्सो फील हैप्पी. और मैं बता रहा हूँ, जिसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, उस स्ट्रेस को उस व्यक्ति को जाके कहिए कि मुझे इसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है. मुझे अगर किसी की वजह से स्ट्रेस होता है तो मैं उसको बुला लेता हूँ. भाई देखिए, आपने इस मैडम के बारे में उस मैडम को ये कहा था और वो मैडम बड़ी परेशान हो रही है, तो आप प्लीज बैठिए मेरे सामने. उस मैडम को बुलाता हूँ, मैडम इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था, आप इस चीज को खत्म करिए. तो वो दोनों वो कहेंगे नहीं नहीं इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने वैसा कहा. सो जो भी मन में है ना, एक बार निकाल दो सारा. जब तक आप मन में रखा हुआ निकालेंगे नहीं ना, तब तक ये स्ट्रेस चलता रहेगा. एंड इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वी से वन लाइन, इफ यू डू नॉट एक्सप्रेस, समवन एल्स विल एक्सप्रेस. ये अब रामचंद्र जी और भगवान कृष्ण के जमाने नहीं है कि आंखों ही आंखों में आपने एक दूसरे को समझ लिया, 15 साल से साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं. उसको तो समझ लेना चाहिए था कम से कम. मुझे वो खुदा की तीसरी टांग तो है नहीं जो समझ लेगा या समझ लेगी. आपको लगता है, हस्बैंड को लगता है कि वाइफ मुझे समझ नहीं रही है, 15 साल साथ में हो गए. उसके बाद इतना समय नहीं है कि आपको समझती फिरे. वो 15 साल खपा दिया उसने अपने आपके साथ. अब आपका काम है कि आप पूछो क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या टेंशन है, आप पूछे. या अगर आपको समस्या, आप जाके बोलिए कि मुझे इस वजह से स्ट्रेस हो रहा है, प्लीज डू समथिंग. एंड योर colleague, your husband, your wife, they will be very nice to you and they will ask कि देखिए मुझे ये समस्या हो रही है. ठीक है, अगर आपने कहा कि 10 बजे चलना है और आपने बोल दिया, वो तैयार हो गई, लेकिन उससे पहले आपको कॉल आया था बॉस का कि भाई 10 बजे जाना है, तो अब आपको बताना पड़ेगा उसको तुरंत. आप 10 बजे ये नहीं बोल सकते मैं नहीं आ सकता, तो शी विल बी अंडर स्ट्रेस. आपको तुरंत, देखिए एक रिस्क तो है, लड़ाई झगड़े का रिस्क तो होता है, बट आपको लेना पड़ेगा. यू हैव टू टेक द रिस्क, यू हैव टू रिमूव दैट रिस्क, दैट स्ट्रेस. तो आपको एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा. until unless you express, you will not be the successful person. इसलिए आपके मन में जो चल रहा है ना, उसको बड़े सभ्य तरीके से एक्सप्रेस करिए. आज का जमाना एक्सप्रेशन का है, वो जमाने लद गए हैं जब वो पिक्चरों में ना फूल दिखाते थे, वो देते, एक साल निकल जाता, 2 साल निकल जाता था, हीरो हीरोइन देखते रहते एक दूसरे को. टुडे द टाइम हैज कम टू एक्सप्रेस. अगर आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आप जहाँ पे वहीं पे रहेंगे और घुट घुट करके एक दिन चले जाएंगे पृथ्वी से. इसका आप ध्यान रखें. सो प्लीज, स्ट्रेस जैसे ही होता है उस स्ट्रेस को डिफाइन करें, एनालाइज करें कि स्ट्रेस किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे दूर होगा. जिसकी वजह से हो रहा है उससे बात करिए, कैसे दूर होगा उस चीज की बात करिए, और कहाँ पे जाके स्ट्रेस दूर हो सकता है वहां पे जाइए. खत्म, कोई सोचने की बात ही नहीं है. थैंक यू. Thank you, sir. Next question is from Dr. Rana. At workplace, you are delivering your 100%, but people are trying to interrupt you constantly. What to do then? See,
आजकल हमारे देश में ये समस्या चल रही है. There is one person who is trying to do everything for the country, but there are hundreds and thousands of people who are trying to interrupt. इसका सीधा सा तरीका ये है कि आप हाथी चलते रहते हैं और बहुत सारे जानवर आपस में इधर उधर से उसके लिए परेशानी खड़ी करते रहते हैं. But the elephant is never afraid. So you have to become elephant. You have to continue doing your work. You have to continue doing the things. और वो जो इंटरप्शन करने वाले लोग हैं वो तभी तक इंटरप्ट कर सकते हैं जब तक आप पावरफुल नहीं है. The moment you become more eligible, more powerful, more secure, more in a better sense, you have more capacity to deliver the work. तब तक ही वो आपको इंटरप्ट कर सकते हैं. जब तक कोई भी व्यक्ति आपकी इंसल्ट तभी कर सकता है जब आप उसको अलाउ करो, जब आपको अलाउ करेंगे. कोई भी व्यक्ति आप पे तभी अटैक कर सकता है जब आप निर्बलता दिखाएंगे. निर्बलता नहीं दिखा. अभी देखो ना, हमने अपनी पूरी फोर्सेस इकट्ठी कर दी हैं गालवान में, वो अपने आप ही निकलने शुरू हो गए हैं क्योंकि हमने भी वही किया. अगर ये पुरानी बातें होती तो शायद वो अब तक कब्जा कर लेता चीन हम पे, लेकिन हमने भी पूरा का पूरा दमखम दिखा दिया जितना भी था. they are afraid. So you have to be very 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 sure that these people are not able to interrupt you. And अगर ये लोग इंटरप्ट कर रहे हैं तो सही जगह पे जाइए जहाँ पे इस इंटरप्शन को रोक सकते हैं. आप उनको जाके बोल सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्यों इंटरप्ट कर रहे हो, आप ऐसी क्या समस्या है कि जिसमें मेरी वजह से आपको समस्या खड़ी हो रही है, आप इंटरप्ट कर रहे हैं. क्या आप मेरे से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ जाइए, मैं तो रोक नहीं रहा हूँ. या आपको लगता है कि मैं ज्यादा पावरफुल हो रही हूँ इसलिए हो रहा हूँ, तो आप बन जाइए पावरफुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई विल बी देयर टू हेल्प यू. ये सारी की सारी चीजें आप को अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा वहां पे भी. सो नोबडी विल बी एबल टू इंटरप्ट यू. थैंक यू. Thank you, sir. Sir, another question from Kavita Bhatia. How to overcome stress and anxiety? Okay, that's very wonderful question. अभी 3 जुलाई को मैंने स्ट्रेस के ऊपर एक रिफ्रेशर कोर्स रखा हुआ था, करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस. उसमें ये क्वेश्चन तकरीबन सभी ने पूछा, लेकिन मैं कविता भाटिया जी से कह देना चाहता हूँ, स्ट्रेस और एंग्जाइटी दोनों अलग होते हैं. स्ट्रेस जो है वो टेम्परेरी होता है और एंग्जाइटी जो है परमानेंट हो जाती है. स्ट्रेस परमानेंट जब हो जाता है तो एंग्जाइटी बन जाती है. स्ट्रेस क्या होता है कि एनवायरमेंटल है, सोशल है, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, कल्चरल है. किसी ने आपको टाइम दिया था 3 बजे आने का, वो नहीं आया, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं. वो एंग्जाइटी नहीं होती, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं. आपका बच्चा स्कूल से टाइम पे घर नहीं आया तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं. सो स्ट्रेस कैन बी रिमूव्ड. कुछ स्ट्रेस सोशल होते हैं. आपका दोस्त आपसे बात नहीं कर रहा है, उसने आपको मैसेज नहीं दिया, आपने मैसेज भेजा, आपने देखा 15 मिनट के अंदर मैसेज आना चाहिए था, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, उसने बात नहीं की, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं. स्ट्रेस होता है तनाव और एंग्जाइटी होती है चिंता. एंग्जाइटी भी 2 तरह की होती है. एक नॉर्मल एंग्जाइटी होती है, एक न्यूरोटिक एंग्जाइटी होती है. एंग्जाइटी ये जैसे चिंता है कि मेरे एग्जाम है कल लेकिन मेरे पास पेन नहीं है, ये स्ट्रेस नहीं है, ये चिंता है. तो आप क्या करेंगे, इसको दूर करने के लिए आप पेन ढूंढने की कोशिश करें. पेन कहाँ है, तो आप पेन ढूंढते हैं. आप देखा आपका एडमिट कार्ड गुम हो गया, तो अब आप ढूंढ रहे हैं, तो ये स्ट्रेस नहीं होगा, ये चिंता है. आप तो चिंता जैसे उसका कॉज मिलता है अपने आप ही दूर हो जाती है. न्यूरोटिक एंग्जाइटी वो एंग्जाइटी होती है जिसमें आपको चिंता का कारण ही पता नहीं चलता. यू आर अफ्रेड, यू आर फियरफुल. आपको समझ नहीं आ रही कि आप टेंशन में क्यों है, आप स्ट्रेस में क्यों है. जब टेंशन और स्ट्रेस का कारण नहीं पता चलता, दैट बिकम्स न्यूरोटिक एंग्जाइटी. फॉर एग्जांपल, आप रात को सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर एक अनकॉन्शियस फियर बैठा हुआ. किस चीज का फियर, कि अगर मैं उस गली से गुजरूंगी कहीं ऊपर से बिल्डिंग ना गिर जाए मेरे ऊपर, अगर मैं वहां से जाऊंगी बारिश हो जाएगी तो मैं कहीं मुझे निमोनिया ना हो जाए. ये न्यूरोटिक एंग्जाइटी होती है. या आपको लग रहा है मेरे बच्चे स्कूल गए हुए हैं, कहीं रास्ते में बस जो है कोई किडनैप ना कर ले, हाईजैक ना कर ले, ये न्यूरोटिक एंग्जाइटी होती है. सो स्ट्रेस और एंग्जाइटी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज. और ऐसे लोगों के साथ बैठें जो खुश हैं, जो हंसमुख हैं, जो ह्यूमरस हैं, जो आपको समझते हैं, जो आपको अच्छी तरह से काउंसिल कर सकते हैं, जिनके साथ रहने से आपको मजा आता है, अच्छा लगता है. आप अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपनी मम्मी पापा से बात कीजिए, अपने भाई बहनों से बात कीजिए. जैसे आपको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस में रहना नहीं है बिल्कुल भी. The moment you start feeling that you are under stress, please talk to your mom, talk to your father, talk to your brother, talk to your sister, talk to your husband, talk to your wife, talk to your children, या talk to your friends जो आपको हंसा सकते हैं. आपको लगता है ये मेरा दोस्त ऐसा है जिसको मैं बात करूंगी एकदम से हंसा देगा मुझे, आपका स्ट्रेस दूर हो जाता है. No problem. Thank you. Thank you, sir. Another question from Shanti. It's a nice session, but it is explained from the other side of the table. What about the behavior and etiquettes of the higher ups? हाँ, शांति जी बहुत अच्छा. शांति जी ने बड़ा शांति वाला क्वेश्चन पूछा है. बट आई विल आंसर. देखिए, मैंने इसका आंसर दे दिया था. जो हायर अप्स होते हैं ना, वो आपके लिए नहीं बैठे हैं वहां पे.
हायर अप्स आर सिटिंग देयर फॉर द कॉलेज। सिर्फ आप ही नहीं है, आपके कॉलेज में अगर 70 लोग हैं ना, तो ही और शी हैज टू टेक केयर ऑफ 70 पीपल। आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है, आपको सिर्फ अपना कॉलेज आना है, 9 से 5 करना है, अपनी सैलरी लेकर के घर निकल जाना है। आपको जो बच्चे हैं 2-4 दिए गए हैं, 15-20 बच्चे, उनको पढ़ाना है। आपको ये चिंता नहीं करनी है कि कॉलेज के अंदर एसी चल रहा है या नहीं चल रहा है। आपको ये चिंता नहीं करनी है कि जो बच्चे हैं वो टाइम पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपको ये चिंता नहीं करनी है पेरेंट्स के जो फोन आ रहे हैं हायर अप्स को, वो उनको कैसे टैकल करना है। आपको तो अपना सुबह आना है, गाड़ी से उतरना है, अपने स्टाफ रूम में जाना है, वहाँ पे 2-4 गपशप मारनी है, अपनी लेक्चर लेने हैं और जो भी आपके पास काम वो करना है। लेकिन जो हायर अप्स है ना, उनको 70 तो टीचरों का ध्यान रखना है, उसके बाद 50 जो नॉन टीचिंग स्टाफ होगा उसका ध्यान रखना है। फिर उसको ये भी ध्यान रखना है इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है कि नहीं, उसको ये भी ध्यान रखना है कि जो वाइस चांसलर है उसके पास से जो मेल्स आ रही हैं उसको करना है। फिर उसको पेरेंट्स के जो शिकायतें आ रही हैं उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके आप हायर अप्स के बिहेवियर का ध्यान रखें प्लीज। ये मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि उसको एक चीज नहीं सोचनी है, उसको बहुत सारे लोगों के बारे में, उसने हजारों लोगों के बारे में सोचना होता है उस व्यक्ति ने। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन फर्स्ट कि वो ऐसा क्यों है। जैसे आपको पता चल जाए, आप तो जाएंगे सर मुझे छुट्टी चाहिए। अब 70 में से पता चले 15 लोगों ने छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया, 20 ने कर दिया, वो तो छुट्टी देने के पावर है, लेकिन वो किससे छुट्टी मांगेगा? उसके घर में भी उसका बच्चा रो रहा है, उसकी वाइफ बीमार है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, लेकिन उसकी पोजीशन ऐसे वो जा ही नहीं सकता। सो ही इज आल्सो अंडर टेंशन, ही इज आल्सो अंडर स्ट्रेस, उसको भी चिंताएं हो रही हैं, लेकिन वो शो नहीं कर सकता। हायर अथॉरिटी के पास किंग हैज नो राइट टू शो हिज इमोशंस। ये है पुरानी कहा लाइन है ये, किंग हैज नो राइट टू शो हिज इमोशंस, किंग हैज नो राइट टू लव, नो राइट टू हेट। ना वो प्यार कर सकता है ना वो घृणा कर सकता है, क्योंकि दोनों ही करेगा तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी उसके लिए। सो उसको कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग्स है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इफ यू आर लिटिल बिट गुड बिहेव्ड विद दैट पर्सन, हो सकता है वो धीरे धीरे खुल करके आपको बताएं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपको भी समझने की कोशिश करनी। वो तो समझ ही रहे हैं आपके लिए, सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कराना ये आसान काम थोड़ी है, तो इसका भी आप प्लीज ध्यान रखें, तो कोई समस्या नहीं रहेगी। थैंक यू मैम। Now we are going to take the last question, sir. It's from Bhanupriya Bhatt. Sir, I agree with you. You told good things about professional politics. As said by you, one don't have to waste time on calls for 10 minutes or more. I want to ask, isn't it the responsibility of the employer to look after the work-life balance of an employee? And one more thing I want to ask, isn't informal communicated play an important role in the mental health of employee? ये क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेस वाला है ओके क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पूछी हैं। क्या भानुप्रिया बोला? भानुप्रिया भट्ट जी, भानुप्रिया भट्ट जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसमें इन्होंने बहुत सारे, ऐसा लग रहा है इनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, क्योंकि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी ऑल्सो, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने मिक्सअप कर दी हैं। लेकिन जैसे पर्सनल कॉल बोला, फिर एम्प्लॉयर का बोला। देखिए, एम्प्लॉयर का सबसे पहला काम होता है आप लोगों का ध्यान रखना। ध्यान रखने का मतलब ये नहीं कि आपको दूध पिलाए, चाय पिलाए, खाना खिलाए, ये नहीं है। मतलब आपको अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द प्रिंसिपल डायरेक्टर। दिस आई कैन से फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। इफ वन ऑफ माय फैकल्टी इज फीलिंग सैड एंड बैड एंड डिप्रेस्ड, तो सर्टेनली until she comes to me I will not be able to understand। अगर मुझे कहीं और से भी पता चलता है तो ऐसी बात है जिसपे मैं कर सकता हूँ काम, तो मैं आई विल गो। लेकिन जब तक वो मुझे नहीं बताएगी या नहीं बताएगा तो आई कैन डू नथिंग। और बाद में वो फैकल्टी बाहर जाकर के बोल दे कि हमारा प्रिंसिपल, हमारा डायरेक्टर ऐसा क्लोज है, ऐसा है कि हमारा ध्यान नहीं रखता। फर्स्ट यू हैव टू कम एंड यू हैव टू टेल। मैंने कहा ना, एक्सप्रेसिव होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सिर दर्द है, पेट दर्द है, मुंह में दर्द है, नाक में दर्द है, आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है, वाइफ के साथ प्रॉब्लम है, आप आकर के बोलिए तो। लेकिन प्लीज रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। ये नहीं कि आपको जाना पार्टी में और आप कहते हैं मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब होगी, मेरे बच्चे, एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना प्रिंसिपल बस खबरें आती हैं। एक बार अगर आपके बॉस का ट्रस्ट आपके ऊपर खत्म हो गया, इट विल नेवर कम बैक। वंस अ ट्रस्ट इज ब्रोकन, दिस ट्रस्ट विल नेवर बी जॉइंट अगेन। ये ध्यान रखना। मैं सभी पे आंख मूंद के विश्वास करता हूँ, ये मेरी क्वालिटी है। See, I trust everyone until unless there is a chance he or she gives me the chance to distrust himself or herself. The moment that person gives me the chance to distrust, I will never trust this person, चाहे वो गोली मार दे। क्योंकि मुझे पता है इस व्यक्ति ने मेरे साथ झूठ बोला, मैंने उसके साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम किया था। लेकिन अगर वो झूठ बोल करके मैंने कहा छुट्टी ले लो, आप जितनी लेनी ले लो, दे देंगे। Unless there is a problem in the college, जब आपको चाहिए तब तो हम दे रहे हैं आपको, लेकिन जब हमें चाहिए तब तो नहीं आप आ रहे ना। प्रिंसिपल को आपकी जरूरत है, एग्जाम चल रहा है, वहाँ पे बच्चों की समस्या है, पेरेंट्स की समस्या है। दैट प्रिंसिपल इज सेइंग ओके स्टे फॉर
1 more hour, but you say नहीं मैं तो नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, मेरे बच्चे। लेकिन जिस दिन आपको प्रॉब्लम होती है आप तो तुरंत 2 दिन की छुट्टी लेके भाग जाते हैं। वो आप देखते नहीं कि प्रिंसिपल को कितनी प्रॉब्लम होती होगी। तो ये चीजें ध्यान रखना जरूरी है। एम्प्लॉयर टेक्स केयर ऑफ योरसेल्फ, आपका भी ध्यान रखते हैं एम्प्लॉय। ऐसी बात नहीं, कोई भी एम्प्लॉयर जिसने आपको एम्प्लॉय किया है वो ऐसी बात नहीं है कि वो आपका ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन जब आप इतना उनको प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं, आपकी खबरें जब उनके पास जाती हैं कि आप सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, आप सही ढंग से ये नहीं कर रहे, तो उनके मन में भी कई बार उठता है कि यार ये लोग तो काम ही नहीं कर रहे हैं ठीक ढंग से, तो मैं क्यों, व्हाई शुड आई थिंक अबाउट दैट। सो एक स्टेज ऐसे भी आती है कि मैन एम्प्लॉयर थिंक्स ठीक है ये अपने ही कर्मों से यहाँ से जाएंगे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए वो आपकी बात सही है भानुप्रिया भट्ट जी कि एम्प्लॉयर का ये कर्तव्य बनता है कि आपका ध्यान रखे, लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप कॉलेज के प्रति निष्ठावान बने, आप अपने कॉलेज के प्रति निष्ठावान बने, अपने एम्प्लॉयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इंटरेस्ट है उसका भी ध्यान रखें। बिकॉज इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वी से द बिजनेस ऑफ अ बिजनेस इज बिजनेस। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस इसलिए करता है उसको प्रॉफिट मिले। जब उनको लग रहा है कि आपसे प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है तो वो सोशल कॉज करने के लिए तो बैठे नहीं है वहाँ पे। सोशल कॉज तो हो ही रहा है, लेकिन आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for your thought-provoking session, and there's a lot to ponder upon. It was a very enlightening session and was very fruitful, and learned a lot from it on professional etiquettes at the workplace. So we would be able to make the most of your session. And I would also like to thank our principal for constant guidance and encouragement. I would like to thank all the participants for making this webinar a huge success. My entire team, nothing would have been possible without them. My webinar committee, and especially Ms. Baljeet Kaur, the program coordinator of this program. Thank you, sir, for this enlightening session. Thanks a lot, sir. जी, डॉक्टर विनीता से मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर ज्ञानेंद्र ओझा जी से मैं कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं ज्ञानतोष झा जी, डॉक्टर ज्ञानतोष झा, हाँ, ज्ञानतोष झा जी से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि थैंक यू वेरी मच। उनसे कहना चाहूंगा मेरे हृदय के सप्तम द्वार से कि आपने मुझे इस योग्य समझा और आपने पास बुलाया। इतने सारे पार्टिसिपेंट्स आपके 282 के करीब थे, उन सभी ने मुझे ध्यान से सुना, प्यार से सुना, बड़े गंभीरता के साथ सुना और बहुत सारे सवाल पूछे। कम से 10 के करीब सवाल थे ये पूछे और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने डॉक्टर तुली विनीता जी आपने बुलाया और इसके लिए मैं आपका सतत आभारी हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच एंड आई विश ऑल द सक्सेस टू ARSD. ARSD is very near to my heart because जब मैं गुड़गांव में साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए जाता था स्कूल के अंदर इन 93 से 98, तो वो धोला कुआं के बीच में एक जंगल हुआ करता। अब तो सड़क अच्छी बन गई है आपके वहाँ पे, तो वो जो धोला कुआं के बीच में जो जंगल होता था, सड़क जहाँ पे बनी है उस जंगल से होते हुए उधर जाता था जहाँ पे बसें खड़ी होती थी उस समय 93 में। तो बसें भी क्या था, बस ऐसी DTC 1-2 बसें होती थी राजस्थान रोड। तो मैं वहां से जब भी जाता था तो मुझे ARSD को देखने में बड़ा मजा आता था। एक दिन तो मैं जंगल के रास्ते ARSD कॉलेज के अंदर भी गया, वहां से घूमते घामते बाहर निकल के फिर वो पीछे डियर पार्क का जो गेट है उधर से होते मैं बाहर निकला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट एंड आई विश यू ऑल अ वेरी ग्रेट सक्सेस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। धन्यवाद। Thanks a lot, sir, for coming. Thanks a lot.